Unfair Means Bills 2024. Sir, this is quite an interesting bill that the government of India has brought into this parliament. I understand that the government has seen through all the setbacks that has happened in the previous years. When a law is being enacted in a parliament, when a law is brought into the parliament, it means that there had been some bad instances in the past, and that the government has taken into control, and now they are bringing it to the law. One big scam that even shook the entire India was Vyabam scam, which happened in Madhya Pradesh, which brought the nations to the foot and wanted to ask what happened and when it happened, how it happened, and who all are involved in it. The government was quiet on that time. After that, many competitive exams like NEET and UPSC, which all was held everywhere in all parts of the world, they were news in the newspapers and other things where people jumping into the windows and prompting them to their well-wishers who are the exam aspirants. They were writing the exam with all the people telling all the answers from the windows. It all was there in the newspapers. The government was silent about that. And after all these years, look at so many unprivileged people who were being punished by this illegal malpractices. Nearly 1.5 lakh people. A study says by one of the leading papers that 1.5 lakh students have lost their livelihoods because of these malpractices. Sir, this government has to take into control why this bill has been introduced. Why didn't the government look at what was the possibilities of reducing these malpractices? That has not been answered in this bill at all. The bill only talks about the imprisonment, the bill talks about the punishment, and the bill also talks about the fine being imposed. But the bill has not talked anything about how these malpractices can be controlled. For example, who are the causes for this malpractice? Why a student who's appearing for the exam should go into all these kind of malpractices or copying? Because he is not prepared. What stops him? Maybe the language. If an examination is presented to them in their language where they can write their exam, then the malpractice could have been curtailed. But the government of India is very stubborn on their language policy, where the exams has to be held in Hindi only. In regional areas like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, where many of the students are from the state boards, where they are not that prominent in Hindi, they are not able to answer these exams. Therefore, the chances are less. Therefore, they get into this kind of malpractices. But a government of India should have a comprehensive policy where they should attract the students, they should attract the aspirants, they should welcome them with training centers. The government has not done anything about that. If you want a UPSC exam or a railway recruitment, what are the training centers? What are the educational things that has happened by this government? Nothing has happened. But if you do something wrong, you will be punished. Okay, accepted. But what have you done for these aspirants? What are the training centers that has been set up by this government, which has not been addressed or not discussed about? That is a bad part of this bill. So another issue is that whenever the states, any state which is talking about the education or examinations, you should take the state of Tamil Nadu as an example. The exams which were conducted, for example, UPSC, which we are all discussing about, our Tamil Nadu Chief Minister has given assistance and programs such a way that he is paying nearly 7,000 rupees for each and every UPSC student who is going to appear for those kind of exams. When he is selected for examinations, a sum of rupees 25,000 has been paid to them for his appearing for the interviews. This kind of assistance is given by the Tamil Nadu government. Another instance is that there is another program. It is called Nal Mudalvan. Nal Mudalvan in Tamil is in Tamil. It means I am the winner. I am the successor. It is the name of that scheme. The scheme is very simple. A student who is participating in a government school or a government college, a student who is participating in an university, private university, they are both exchanged in a certain part of time so that
even the students from the government institutions are also getting the same kind of technology or value addition courses, such a way they can go for these competitive exams. Therefore, the students, the well-being of the students is being brought up, and also they are now free and fair to attend the exams. Lot of Tamil Nadu students are now appearing for the UPSC exams. They are all going, but the language is a barrier. The government should also look into that. What are the reasons these kind of malpractices are happening? And there is a committee being formed to examine all these kind of malpractices. Where is the involvement of the states in it? The states have not been consulted. The states are not being involved in these committees. So suddenly the law says you can book them. An arrest can be made with a warrant, and a bail will not be a matter of right. And also there can be up to 3 to 5 years imprisonment, and also 10 lakh rupees fine that can be imposed. So if suddenly, without even a proper inquiry, if the proper inquiry is not been done, or a partiality has been found out, or someone is going to be partial, who are the persons who is going to be identifying these lawbreakers? How it has been going to be identified? Where is the committee? Where is the state involvement? These are the million questions that comes behind this law. This government of India should look into all these things. So to summarize my submission to this August House, I request the government of India to break this barrier of language which is causing all this malpractice. Number one, involve the states, encourage the states, give them the required funds so that all the students from the states will be able to participate in all this kind of a competitive exams. Number three is involve the states. When the kind of malpractices happen, the committee which is constituted to enquire this kind of malpractices, the state involvement should be there. Therefore, regionality, like when the honorable speaker, when he was as a speaker, he mentioned about the SC, ST or any other caste communities will be partially or marginally penalized in this kind of malpractices. So, end of the day, the fear of the students has to be removed, and only then fair and correct exams will happen. If you take the Western countries, whenever you go, these kind of malpractices are not there. The technology has been involved. If you involve this kind of a technology, then the malpractices will not be there. So the exams are being conducted in these states, and the states' involvement have to be there. So with this, I summarize and say that this law may be amended with my amendments will be given to you or submitted in this August House. And I request the government of India to look at this and honor the states for their investment and also time being spent for the future governors or the future citizens of this India. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member, Srimati Chinda Anitaji. Allow me to speak Chinda. on this bill. Sir? Yeah, please. Mike. Thank you, Chairman, Yes, sir. please. Allow me to speak on this bill, the Public Examinations Prevention of Unfair Means. Sir, the bill is a much needed law and was much awaited by crores of youth who have suffered due to paper leaks, especially in job recruitment leaks. Without taking names of states that have seen such leaks, it can be safely said that this law would deter further leaks as a specific law to punish the wrongdoers, which was missing. So there are few positive things in this, sir. I would like to point out promotion of transparency and fairness. The bill is designed to increase the transparency, fairness, and credibility of public examination systems. This ensures that the hard work and genuine efforts of the candidates are rightly acknowledged and rewarded, thereby safeguarding their future prospects. Model for state adoption. The bill serves as a model draft for states, offering them the discretion to adopt its provisions. This helps in establishing a uniform approach to tackle malpractices in public examinations across different states and prevent disruption in state-level public examinations. Deterrence against unfair practices. Section 10 of the bill, by punishing any person resorting to unfair means and offences, to be punished with imprisonment of 3 to 5 years and a fine of 10 lakh, effectively deters individuals, organized groups, or institutions indulging in unfair means, thereby protecting the integrity of the public examination systems. It ensures that those who seek to exploit the vulnerabilities of the examination system for monetary or wrongful gains are legally discouraged
and held accountable. So suggestions from a party are: why is a candidate given immunity from the bill if he indulges in malpractices that lead to the examination process being vitiated? The bill mentions that a candidate shall not be liable for action within the purview of the bill. I would be happy if the Honorable Minister could clarify this limitation of the functioning of the bill if the candidate is a wrongdoer. Secondly, the bill's implementation might require significant financial and human resources, raising concerns about its practicality and effectiveness, especially in rural or resource-limited settings. Has the Honorable Minister made a plan on ensuring that such limitations of resources do not limit the effectiveness of the bill? The requirement for states to adopt similar legislation could lead to inconsistencies in application and enforcement, potentially creating disparities in the examination systems across different regions. Does the Honorable Minister plan on asking the UPSC to engage with the states in helping them out in enforcing the provisions of the bill? Sir, in conclusion, the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 represents a pivotal stride towards ensuring integrity and fairness in public examination systems. However, the bill does not raise certain concerns that merit further clarification and planning. The exemption of candidates from punitive measures, even when involved in malpractices, needs more clarity to ensure that the law is comprehensive and leaves no room for exploitation. Within the right measures and continued oversight, this bill has a potential to significantly enhance the credibility of our public examination systems, fostering a more just and merit-based society. Sir, in Andhra Pradesh too, the government has taken strict action against people who indulge in leaking exam papers of class 10 at Narayana School in Tirupati. Our Honorable CM Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu has always taken the strongest action against such forms of corruption, irregularities, and other criminal activities. Sir, with these suggestions and comments, I support the bill on behalf of my Vice Chancellor. Thank you. Honorable Member Sri Rahul Shewale. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपना तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संधानों की रोकथाम विधेयक 2024 के समर्थन में खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना है। अध्यक्ष जी, वर्तमान में केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों का किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं था। अध्यक्ष जी, परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर देश में खासकर युवाओं के में चिंता थी। प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह विधेयक नापाक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों के में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए बहुत आवश्यक हो गया था। अध्यक्ष जी, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के मामले सामने आए। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद हरियाणा में पदों पर भर्ती, गुजरात में जूनियर क्लर्कों की भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था। अध्यक्ष जी, इस विधेयक में सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने में और युवाओं को आश्वस्त करने की परिकल्पना की गई है कि और उनके ईमानदार प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनको भविष्य में सुरक्षित होगा, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। अध्यक्ष जी, छात्रों को निशाना बनाए बिना संगठित गिरोह, माफिया तत्व और कदाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया था। इस विधेयक के कानून बनने पर यह संभव हो जाएगा। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन करने का प्रावधान है, जो कंप्यूटराइजेशन परीक्षा जी प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें भी लागू करेगी। अध्यक्ष जी, समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंसुलेट करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी, फुल प्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन तैयार करेगी, परीक्षा केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करेगी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले आईटी और भौतिक बुनियादी ढांचे दोनों के लिए राष्ट्रीय मानक और सेवाएं तैयार करेगी। अध्यक्ष जी, नापाक तत्वों को प्रतिरूपण विधियों का उपयोग करने और पेपर लीक और अन्य कदाचार में लिप्त होने की घटनाएं रोकने के लिए यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस अध्यक्ष जी विधेयक के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के लिए 3 से 10 साल की जेल की सजा है और 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इससे सार्वजनिक परीक्षा में कदाचार में कमी आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। अध्यक्ष जी, इससे सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक संस्थान द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। इन शब्दों के बाद मैं मेरी वाणी पर धन्यवाद। Yes. Honorable member Shri Achyutanand Samanta जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलने के लिए आप समय दिए, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी बीजू जनता दल, आई स्टैंड टू सपोर्ट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 introduced by Honorable Union Minister Shri Jitendra Singh ji. I believe the intent of the bill is very good to preserve the value of the public examination as a test of merit. If unfair means at public examinations continue to be very common like it is today, the aspirants and students believe that they have a right to do so because so many others have done so without being penalized. Cheating leads to delays and cancellation of examination, adversely impacting the prospects of millions of youth. In the absence of any specific law to deal with unfair means and offenses commented in the conduct of public examinations, we welcome the legislation from the Government of India. In this context, I would also like to mention in our state, Odisha, always all examinations are conducted with fair means till date. No paper leaks, etc. is being reported like other few states reported frequently. In this context also, I would like to appreciate the checking malpractice and organized cheating in government recruitment exams, proposing a minimum imprisonment and also fine for persons and organizations indulging in such illegal practices. Common practices like leakage of question paper or answer key, directly or indirectly assisting the candidate in any unauthorized manner, tampering with the computer network or a computer resource or a computer system, creation of fake website to cheat, conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or other letters, manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations will be controlled because it will now carry punishment and fine for both individual and the service provider, including barring from assignments being given. I am from the field of education and I am surprised and shocked by the new ways that some notorious students and ill-intentioned people are coming up with. Every examination season, the media reports scandals. It has now gone high technology. The recent hit cinema 12th Fail brings this out in a harsh and real form. So this is definitely the need of the time. But we need to go to the root cause also. Merely tackling the menace of corruption is not enough, as it is just a symptom of deeper issues in the system. The main cause is there is mismatch between the number of aspirants and the number of opportunities that are available. Learning is conditioned by the proposed examination system. If the examination pattern tests mostly memory, then teaching will ensure that students only prepare for rote memory. This is the general pattern. We need to address this issue. NEP 2020 goes a long way in handling it in formative years. In a situation where opportunities aspired for are really limited, the boundary between the selected and rejected candidates is a simply cut-off score. It is not unreasonable to imagine that
while those selected are deserving, there could be deserving candidates even among those rejected. The large number of aspirants, huge amount of resources spent on them by families is a testimony of their keenness to crack the exam. The coaching centers focus on technique use of cracking the exam, time management, and frequently conduct a series of mock exams to churn out exam smart students. The climate of cruel competition is instilled in both schools and coaching centers, whereby students are taught to view their classmates as rivals. Cheating, despite being unethical, is similarly perceived as an effective shortcut to passing the exam. Desperate parents also go to any extent to see their children emerge victorious in the exam and also in the game. Yes. In this Indian educational setup and context, the element of fear underlies most activities associated with learning and assessing. The presence of fear is often justified as being important for learning and is used to scare, threaten, or intimidate children. Fear associated with consequences of not learning takes precedence over the joy of learning. The exams are more about elimination than selection, thereby enhancing the importance of coaching. Fear is a key component of such exams as implication of success and failure in them are severe. Yes. What are the possible solutions available? Alternate methods, alternative perhaps more human way of examining students' aptitude and competency needs to be identified. Entrepreneur skill, students should be helped in honing their entrepreneur skills. Meaningful choices, make education more meaningful that supports students to make choices that are not influenced by their social prestige like engineering, medicine, and more importantly be given opportunities and supported to develop different facets of their personalities. Responsive education, make education responsive to employment skills required. However, a unilateral relationship between education simply responding to market needs will do more harm than good. I hope these issues are addressed behaviorally and we stand to support the bill. And in this regard, I also request Honorable Minister to see that financial punishment and imprisonment should be lessened in case of the students' matters. It should be more strict for the agency or the institutes or the centers, those who are really practicing and motivate the students to adopt the unfair means. In case of financial punishment and imprisonment, should be less to the students, those who have no knowledge when they adopt this method during the examination. Thank you very much, sir. माननीय समन्ता साहब जो बोल रहे थे, Now your time will come. नो आई एम जस्ट इंटरवीन स्मॉल, और इन्होंने भारत में अपने राज्य में जो गरीब आदिवासी बच्चों को 40,000 बच्चों को ये अपने यहाँ निशुल्क पढ़ाते हैं, जो नर्सरी से लेकर के +2 तक, और देश में शिक्षा Yes. और गरीबों की शिक्षा देने वाले इस सांसद को इस सदन के रूप से, और मंदिर अगर देखना है तो इनके विश्वविद्यालय में जाके देखिए, 40,000 बच्चे निशुल्क, और वो भी आदिवासी इनके यहाँ पढ़ते हैं। Very ये good. सचमुच बधाई के पात्र है। The entire house associated with it. Yes. And I'll respond in detail, but I just wanted to clarify, maybe I have not been able to communicate that part. The student is not under the purview of this law. Yes. So I'll explain that when I respond finally. But we have not kept the student or the candidate in the purview of this law. Thank you. Come later. Honorable Member Shri Maluk Nagar ji. स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा है punishment. अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ऐसा लगता है
कि ज्यादातर हम लोग वही जो बिल है उसी को पढ़ के बोल रहे हैं, और इसमें जो बात रखी गई है देश में आने वाले भविष्य को देख करके जो ये कदम है बहुत ही अच्छा है और सराहना के लायक है। और पिछले दिनों हम देखते थे देश के कई प्रदेशों में वहां पेपर लीक हो गए, वहां नकल हो गई, वहां तिजोरी तोड़ करके रात को निकाल लिया, एफआईआर हो गई, 3 दिन में अरेस्ट कर लिया। और खास करके राजस्थान में जो पिछली सरकार गई है, वहां की सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कई बार बयान दिए कि राजस्थान में ये एक पूरा घोटाला और एक पूरा माफियागिरी चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए पैदल यात्रा की। तो मैं मंत्री जी बैठे हैं इनकी डीओपीटी की स्टैंडिंग कमेटी में भी हूं, अभी वहां मीटिंग अटेंड करके आया हूं। जो ये अमेंडमेंट लेके आए आगे के लिए कि करोड़ की आर्थिक रूप से सजा और 3 साल से 10 साल तक की सजा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले 10-15 सालों में जो सुर्खियां जो अखबारों में खबर आई हैं, वो जो घोटाले हुए हैं, उनमें जो गैर जिम्मेदार और बेकाबिल अधिकारी नौकरी के सहारे अब पहुंचे हैं आगे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि समय समय पे जो इस तरह के सस्पिशियस ऐसे लोग हैं जिनको लगता है नकल देख करके करके आए हैं, उनके आचरण को देख करके और एक हर प्रदेश में कमेटी बने जो बीच बीच में अटेंडम चेकिंग करे और जो इस तरह के लोग हैं उन पे भी लगाम लगाई जा सके, जिससे आगे आने वाले समय में जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसके साथ साथ वो भी खौफ हो और वो भी डर हो, जिससे ऐसी कोई घटना ना कर पाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो एग्जाम के दिनों में जो ये लेकर के आए हैं, उसमें जो देश की सीमा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, खासकर कश्मीर में, मंत्री जी कश्मीर से ही हैं, जो उस तरह के गांव हैं जो सीमा पे, उनके लिए जरूर कुछ ऐसा व्यवस्था हो, या तो वहां पे बड़े स्कूल और बड़े कॉलेज बनाए जाएं, या वहां पे ऐसे कोचिंग सेंटर खोले जाएं जिससे कि पूरे देश में उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले और इस सख्त कानून के होते हुए वो क्वालिफाई करके जाएं, तो देश के लिए उनको एक सहयोग मिलेगा। मैं डीओपीटी लॉ जस्टिस में हूं और अक्सर हमारा कन्वर्सेशन होता रहता है और कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जहां मैं अपनी राय वहां नहीं रखता। तो मैं मंत्री से कहना चाह रहा हूं कि जो लॉ से रिलेटेड, जुडिशियरी से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं वो भी इसी पाइप से निकलेंगे, वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन जो उनको बनने के बाद पूरे देश में जो बराबर में हरियाणा प्रदेश है जुडिशरी से संबंधित, हरियाणा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, और ये दिल्ली जो है जहां बैठे हैं हम लुटियन जान में, जहां रायसीना में, यहां दिल्ली में पता नहीं केजरीवाल साहब की सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी है। जहां बाकी सब जगह जुडिशरी में रिजर्वेशन है पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए, और यहाँ पे दिल्ली में नहीं है। तो आज क्योंकि लॉ एंड जस्टिस कमेटी और डीओपीटी से संबंधित है, तो मैं ये भी मांग करना चाहता हूं कि दिल्ली में भी और देश के जिन प्रदेशों में जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं है पिछड़ों और दलितों के लिए, उनमें भी रिजर्वेशन लाया जाना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी से कि जो खास करके उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि वहां तो जो जुडिशियरी से संबंधित बात आई, वो अलग प्रदेश बनाने की मैंने मांग की थी। वो 24 करोड़ के करीब लोग हैं और 8.5 करोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, अलग प्रदेश इसको बनाया जाए। जो 1953 में मांग उठी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने 1955 में बाबा अंबेडकर साहब ने मांग करी, 89 में किसी त्यागी ने चिट्ठी लिखी, 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा, तो एक अलग प्रदेश ये बने। और जब तक इसमें देर लगे
मेरठ में आज दोबारा मांग कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। The formation of new तो state- मैं वापस टॉपिक पे ही No, आ रहा हूं। बिल formation पे of new है, state is अब not बिल come- पे है, आपके लोग भी सब पढ़ के कुछ का कुछ बोलते हैं। मैं जानता हूं साहब, मैं Honorable माफी चाहता हूं member, अगर मैं बोल रहा हूं। honorable वापस आ member, रहा हूं, मैं no. टॉपिक पे वापस आ रहा हूं, मैं टॉपिक पे No, वापस आ रहा formation हूं, of new state is मैं not टॉपिक come पे under वापस this आ bill. रहा हूं। मैं इस बिल का सराहना करते हैं, हम इस बिल को समर्थन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। Thank you. Honorable member Srimati Supriya Sule. Stand on behalf of the Nationalist Congress Party in support of this bill. Sir, I was a little surprised by the Treasury bench when they started the debate. And Honorable Satyapal Singh ji, who himself has been through such exams, has shown so much gray in the examination. So that was a bit disappointing for a person who's already been through the system to talk against the system. It puts him also in gray area, which was little disappointing for me because मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ वर्दी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। ईमानदारी मतलब पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी वर्दी पहनता है उससे हम ईमानदार ही समझते हैं। तो ऐसे जिसने वर्दी पहनी है वो ही अगर एग्जाम पे क्वेश्चन मार्क करे तो मेरा तो अंदर से मैं हिल जाती हूँ कि अभी किस पे विश्वास करें हम। So it was little disappointing for me for the gentleman to speak the way he did. And उन्होंने कहा ईमानदारी, वो कहा न्यूयॉर्क में गए थे और न्यूयॉर्क में ईमानदारी की बातें सुनी। आपकी माँ का खुद सुन लेते ना तो ईमानदारी न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी सबसे बड़ा गुरु इस देश में कोई है तो अपनी माँ होती है, और सबसे ज्यादा ईमानदार बच्चे को कौन बनाना सिखाती है तो वो माँ सिखाती है। So I don't know what context of New York and guru he was giving. I'm just putting things in context about ईमानदारी। और ईमानदारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अपने संस्कार है, ईमानदार होना ही चाहिए। मैं ईमानदार हूँ बोलने की जरूरत नहीं है। You are ईमानदार, it's a good thing, होना ही चाहिए सब में ईमानदार। Sir, while I am complimenting this government for bringing this, I seek a few clarifications just so that we put it in context while the country watches this. Sir, while जब मैं ये बिल ला रही थी तो मैंने एक सिनेमा देखा था, इट्स कॉल्ड 12th फेल। 12th फेल में एक डायलॉग था कि जमी जमाई व्यवस्था मीन्स इट्स अ सिस्टम विच इज ऑलरेडी बीन सेट। नाउ हु हैज सेट दिस सिस्टम? इफ वी से देयर इज अ केस, इट्स ईदर द स्कूल अथॉरिटी, it's the local education department, it could be the local administration, it could be political patronage, or it could be a state-sponsored activity. We don't know, but this is what we have read over the last many years that we have seen. Now, my question to this government is that now there are two, there's a criminal action or there's a civil action. Now, in the jurisprudence, I would like to seek clarification that penalties of 1 crore jail. You clarified, sir, in a small way in the intervention that you are not making it student-centric. It's going to be institution-centric. So could you clarify that how is this system going to work, and is there going to be a rational approach? I am completely with you. अगर तुम गलती करो तुमको भुगतना पड़ेगा. But my clarification in this is that already there is a system in place. अगर कोई भी scam हो तो people do get caught. So then what is the difference in what you're bringing in today in the bill that didn't exist in the past? So if you could kindly clarify for that. Sir, the other alarming thing which even Kadir mentioned, which I'd like to highlight to the minister, is can we not have a foolproof systems ourselves with using of technology, artificial intelligence, kitni sari cheezein ho rahi. So is there a way we can clock this exam by making sure there are no leakages by as many as we can through technology? But there's another side of technology, is because of technology, people are copying more. So how there are walkie-talkies used, there are earphones used, there is chat GPT used. So how are you going to control this through technology from both ends, from the exam side or the person who's giving the exams? If you could kindly clarify that. Sir, you were talking about, he talked about examples of Rajasthan and West Bengal. Sir, with full humility, I would like to highlight, maybe you have not read it or it's not come in the daily newspapers, but in 2023-24, आप ही की सरकार है महाराष्ट्र में, वहां भी एक स्कैम हुआ था तलाठी का. There was, you'll be surprised with the numbers, sir. 11 lakh children applied for that exam. And out of that, they had to suspend the paper, cancel the paper because of leakages. Now, my question to you, sir, is most of these exams are now getting outsourced to big companies like Infosys, TCS and all that. Now, is that the right thing? Or jo pehle tha wo acha tha and outsource? I'm just putting all the points to you. I'm not criticizing you. It's a very democratic debate. Even I'm as a parent, as a citizen, these are concerns brought to us in our constituencies by several aspirants.
So was it good that सरकारी पहले चलाती थी और is outsourcing a good? क्योंकि महाराष्ट्र में तलाठी की जो एग्जाम हुई थी सर, वो आउटसोर्स की थी महाराष्ट्र सरकार में और वहां गफला हुआ है ऐसा आरोप हो चुका है. तो इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे is my question to you, sir. About 9 lakh people applied and 11 lakh had applied for it. Now there are electronic devices. Then there's another exam, sir, which is in Maharashtra State Council. Their job, teachers का job था सरकारी नौकरी के लिए. वहां this person has made 4.85 crores from the teachers. Now these are all examples. I'm not saying आपकी सरकार हमारी सरकार. I just wanted to edit it कि हर सरकार में होता है. ऐसा नहीं है कि आप ही की सरकार होती है और हमारे में नहीं होता. So why can't we take a holistic view and find a way where these issues can be resolved above politics? The other question is coaching classes. Sir, there are a lot of coaching classes. We put out ads कि 100% job हम आपको दे देंगे. How is the guarantee? So will these coaching classes, their advertising come also under this radar? And what is the accountability of this? Because what you're saying is the corruption just starts also here. लोग बोलते हैं हमको इतना पैसा दे दो, आप यहाँ coaching class में आओ, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी. So is there going to be some accountability at this level also? You said service provider. It's an organized crime. What is the specific meaning of service provider and organized crime? You in the bill have said that director को पकड़ लेंगे. There may be 10 directors, out of which 9 may be innocent. How will you track it that this is the ex-director who has created this? If suppose, I'm just giving it as an example, I hope TCS doesn't feel bad about it, but TCS को outsource कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, तलाटी में कुछ गड़बड़ा हो गया. How will you reach which director is it? I mean, what is the system in place? How are you going to get answers to this? How will you find the culprit in the system which is so electronic in today's day and age? So I'm worried about the methodology and I'm concerned about the methodology of how you're going to do it. And delay, there is even the word delay and cancellation of the exam. But delay or cancellation exam to sarkar karti hai. So how will you hold sarkar responsible? So will governments also be accountable in timeline manner? Whichever state government, if they delay or cancel, but then how will the children benefit out of it? Because paper leak ho gaya to cancel ho gaya. How will you hold the government? Who will be the competent authority? It's too vague. I'm not taking away from the government's or DOPT's intent at all. My point is intent may be very, very good, but how are you going to implement it? It should not just be a flowery thing where it all looks good. So my question to this government is that various governments have been through various challenges. Sir, many governments across, no government allows these kind of things. अभी आपने कुछ चाचा भतीजा वगैरह वगैरह बोला था. I felt a bit bad because at least the state where I come from, we are very proud of our IPS and IS officers. They have extraordinary talented team who have built the amount of work politicians have done in building my state, sir. That much work. My collector is outstanding. My divisional commissioner is outstanding. My CEO Jilla Parishad is outstanding. They have come from Jilla Parishad schools, worked very hard, very honestly, and built my state as much as we have built the state as politicians, whichever party. So I think it would be unfair to say that pehle aisa hota tha. Does that mean you're challenging a whole system which is actually flawlessly served? All the IS, IPS officers, there are so many in this room as well. They worked very hard to get where they are. So it's very unfair to make it political. I request, it's a great system. We are very proud of DOPT over the last years. I think we are expecting transparency and fairness. So I appreciate your intent, but let's not criminalize everybody. So if you could kindly clarify what different are you doing than before? And I hope India works only on merit and we support the government on this bill. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Sri Chandeshwar Prasad. Please, mic. Chandeshwar Prasad. बोलिए. अध्यक्ष जी, मैं लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक का समर्थन अपने एवं अपने पार्टी की तरफ से करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित किया है। इसे रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं करना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कई छात्रों को डिप्रेशन हो रहा था, तो कुछ आत्महत्या तक करने की सोच लेते थे। मेधावी छात्र मेरिट होने के बावजूद अपना मुकाम नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक का सारा
जो व्यक्तियों संगठित माफिया व पेपर लीक एवं पेपर हल करने, प्रतिरूपण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसना है। सबसे अच्छी बात यह है, प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। लोक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण, विधेयक 2024 में पर्चा लीक करने, दूसरे की जगह परीक्षा देने, प्रश्न पत्र हल करने या इसमें मदद करने, परीक्षा केंद्र के बजाय अन्य जगह पर परीक्षा कराने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर 3 से 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना तय किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कंप्यूटर आधारित केंद्रों पर परीक्षा का संचालन करने वालों को कदाचार साबित होने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जनमानस में भी सुधार करने के लिए प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। सरकार कानून बना रही है, लेकिन इसका निश्चित रूप से हम कहें कि प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इसके लिए जनमानस में प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति इस बात को समझे कि अब बिना पढ़े पास करने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे। इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। यह कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस केंद्रीय कानून के दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं व केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए नहीं होने वाली परीक्षाएं भी आएगी। किसी धांधली के कारण अगर परीक्षा रद्द हुई तो इसका खर्चा दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं को भुगतना होगा। यह विधेयक हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और इससे हमारे प्रदेश बिहार सहित सभी देशों के युवाओं को फायदा और न्याय दिलाएगा और हम एक बेहतर भारत की बुनियाद रख पाएंगे। और इसके साथ एक बात और हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में जो वाइवा का सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिए। वह भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रास्ता है। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Shri M.K. Vishnu Prasad ji. M.K. Vishnu Prasad ji. Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on this bill, Public Examination Bill. See, the dream of any youth is to get a government job. And the purpose of the exams is to get into a government job or for a higher education. Government job, for example, central government jobs like bank exams, railway recruitment, staff selection, etc. See, you know, after getting a government job, especially a central government job, that youth has got a lot of opportunity till his end. Immediately he'll go for a loan, he can get married, he or she can get married. See, the dreams are plenty. But in this system, there has been several leaks in the past. I am observing for a long time. This August House is talking so many things, and Honorable Minister is mentioning the importance of this bill. I appreciate. This bill is essential. The need are there, no doubt. But we all should remember what happened in Vyapam scam. Let us not politicize this bill. It is a very serious issue. Almost 2,000 FIRs and 200 loss of lives have taken place. And what are we going to answer for this? Conducting an exam is not a joke. You have to prepare, you should print, coding, distribution, evaluation, declaration of results, and then re-examination or recalculation, so many things. In this system, that should be leak-proof.
To ensure transparency, we have adopted some systems. Self-attestation by candidates, shortening the exam cycle from 18 to 22 months, from 18 months to 6 to 8 months, allowing the computer exams so that interviews doesn't take place, digital certification, digital work orders is being issued. In spite of all these efforts the government have been taking for so long, it is reported, it is heartbreaking that almost 41 documented leak cases have taken place. All across India, I mean, almost 15 states have been reported for the job of around 1.04 lakh jobs, employments. Almost 14 million people have applied. And look at their condition. Once their unfair means takes place, then one, immediate stoppage of exams, and you don't know when the next exam will take place, and the dreams of the youths, millions of youths, is shattered. I urge this government, as my fellow congressperson, Sri Suresh mentioned, that the re-examination should take place within 3 months from the date of cancellation. Please consider this important issue because the youths cannot wait indefinitely. Until now, no FIRs. Around 41 leak cases, there is no FIR, no arrests have been made. We are really surprised to know that there is no legislation specifically to deal with these unfair means. And that is why now we are now bringing this bill. We appreciate. See, malpractices or unfair means take place in several ways. Leakage of papers, impersonation, unauthorized entry into the examination centers. Even computers are being hacked. It is coming in the bill. I would like to mention, when computers are hacked, why not EVMs? Let us not brush aside this point. You're touching a very sensitive topic. See, when this government is bringing about computers being hacked, then EVMs also can be hacked. So that I think this government also should focus in bringing a separate legislation. Examination and election are no different entity. We have to consider this both equally and important. So the punishments are extending from 3 years to 10 years, 1 crore punishment. Yes, agreed. At the same time, when the service providers are being punished, the important point is not only the employee, but the management team, the core person also has to be roped inside the investigation. The investigation is done by DSP or ACP level, I think so. When the system is going like this, I would like to know, this is a very good system. Legislation should be brought. Offenses should be inquired. If proven guilty, he should be punished. Yes. But this is for the central government examination centers alone. But I would like to know, more than percentage wise, if you see, more percentage of people are appearing in the private examination, private colleges and deemed universities. They are also getting graduated and undergraduation, and for higher education, they are appearing in their own colleges or the universities. I am not saying all the deemed universities or private institutions are doing malpractices, but some biased practices are still taking place in the name of internals. So what is a regulatory system this government is going to have to control? So we should have some monitoring system where the most talented people are deprived and untalented people or unqualified or less qualified people are being pushed and encouraged by the management. So this also, I mean, the government should think in a comprehensive manner how they are going to rope in the management team also, the deemed university people also, for conducting exams. So this government
has brought in a legislation which is welcomeable, with some recommendations being passed from our side. And most importantly, I am happy to see the minister, while presenting this case, is talking about the level playing ground. But level playing ground comes with the students of government schools and private schools, government institutions and private institutions. They have to face the exams called NEET. In Tamil Nadu, we are vehemently opposing this exam NEET because the students are trained in the government syllabus in particular language, and they have to compete with the students all over India who are being educated in the private institutions, and the syllabus and the examination papers are being prepared at the central level. Where is the level playing field here? This disparity, this government has to consider with a motherly nature approach, so that, see, he is also mentioning about so many suicides. In Tamil Nadu, so many suicides have taken place because our children are not able to get through the NEET examinations, in spite of excellent marks, outstanding marks in the state examinations level. So, comprehensive bill has to be passed. We support the bill. At the same time, there are some suggestions we are giving you, this government, kindly consider. And once again, I thank you for giving me an opportunity to speak on this bill. Thank you. Thank you. Honorable Member Shri Pratap Chandra Sarangi ji. चेयरमैन सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बिल में पार्टिसिपेट करने के लिए, मुझे अनुमति देने के लिए। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 अथवा द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, ये एक ऐतिहासिक बिल है। ये माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार का ये चांस है संभवतः इस देश में बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा किया जाता था, परीक्षा पद्धति को संशोधित करने के लिए, ये माननीय मोदी जी के समय में हुआ और माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को भी इस निवेदन, इस कानून की बहुत ही जरूरत था। मेरे को याद आता है मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा गांधी हुए। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय एक बार गोरा इंस्पेक्टर आए थे और 5 शब्दों का डिक्टेशन किया, सारे बच्चों ने ठीक करके लिखा। मोहनदास जी का एक बहुत गलत था। टीचर ने इनको कितना इंस्पायर किया, इसको मान लो, करेक्शन कर दो देख करके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो सत्य का पुजारी था बचपन से, इसलिए महात्मा बने। इसको नहीं माना। अगर हर विद्यार्थी मोहनदास जैसा होते हैं तो इस कानून की जरूरत नहीं होता, लेकिन कानून की जरूरत ऐसा है कि हर एक विद्यार्थी ऐसा नीतिवान नहीं है। कानून की आवश्यकता इसके लिए जो कानून को तोड़ते हैं, जो कानून मानने वालों के लिए स्वयं अनुशासित होकर के, उनके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं। हमारा शास्त्रों में ऐसा है, न राजा न च प्रजासित, न दंडो न च दांडिका, अर्थात एक आदर्श राष्ट्र में राजा और प्रजा नहीं होना चाहिए, दंड देने वाला दंड लेने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नागरिक चेतना विकसित नहीं होता है तब तो कानून की जरूरत है। कानून के बिना एक दिन भी नहीं चलेगा, इसलिए कानून की बहुत जरूरत है। आज हम क्या देखते हैं, सीनियर ऑफिसर्स, लीडर्स, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पाप कर्म में सहभागी होते हैं। और जैसा हमारे मित्र सत्यपाल सिंह जी ने बोले कि एक राज्य में ऐसा हुआ था कि इसको लीगलाइज करने की कोशिश किया गया और सारे पुलिस अधिकारी भी मिलकर के इसमें सहभागी बने। शासन बदल जाने से प्रशासन का चरित्र भी बदल जाता है। जो पुलिस उस समय कॉपी सप्लाई करता था, वो आज कॉपी को डंडा लेकर के रोकता है। इसलिए हमको इस कानून की बहुत जरूरत है। कानून नहीं होने के कारण समानुपातिक दंड व्यवस्था भी नहीं हो सकता है, इसलिए ये भय पैदा नहीं होता है, टेररिस्ट को टेरराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कानून की। और परीक्षा में माल प्रैक्टिस कई दिनों से चलता है, आज नहीं। अति प्राचीन काल में हमारे देश में एक बच्चा को रॉयल स्कूल में एडमिशन को इनकार कर दिया गया, उसका नाम है एकलव्य। द्रोणाचार्य ने जब अरण्य में देखा
कि वो खुद अपना निष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर अपना पौरुष को प्रदर्शित कर सकता है। 12 साल 14 साल राजकीय परिवेश में जो द्रोण के पास में रह करके ट्रेनिंग लिया था और बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन न होते हुए भी उनको ये दबा दिया, परास्त कर दिया, तो द्रोणाचार्य ने माल प्रैक्टिस का सहारा लिया, उसका अंगूठा को काट लिया, गुरुकुल को कलंकित कर दिया। आज भी मैं देखता हूं कोई ट्यूशन मास्टर जा करके परीक्षा हॉल में कॉपी सप्लाई करते हैं, 25 साल से देखते आता हूं और मेरा जीवन में बहुत कटु अनुभव है। एक बार मैं एक कॉलेज में इन्विजिलेटर का काम करता था, एक हाईकोर्ट का जस्टिस का बेटा वो परीक्षा देता था, वो बहुत माल प्रैक्टिस किया, बाहर जाकर के कॉपी कलेक्ट किया, मैं उनको पकड़ा और उनके खिलाफ लिखा। वो कई महीना तक प्रभावी अफसरों को ला करके मेरे को प्रभावित करने की कोशिश किया, लिख दो, ये कर दो। उसके बाद धमकी दिया, तुमको अरेस्ट करेंगे। तो मैंने बोला मैं अरेस्ट होने के लिए कोई शंका नहीं है, कॉपी पकड़ करके मैं अरेस्ट होने को तैयार हूं, लेकिन जजमेंट बेचने वालों को मैं कभी नहीं मानूंगा। और ऐसा मैंने कई बड़े बड़े लोगों का रोष का शिकार हुआ कॉपी को पकड़ने के लिए। हमारे मित्र अच्युत सामंत जी ने बोले कि उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं है। उड़ीसा में ऐसा क्या क्या है, मैं इसका जीवंत उदाहरण हूं। उड़ीसा में मैं जब विधायक था, काउंसिल का मेंबर था, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एग्जामिनेशन कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी में भी था। और मैं एक पकड़ा गया कि एक फेल पिला को फर्स्ट क्लास कर दिया गया, एक फर्स्ट क्लास पिला को फेल कर दिया गया। इसका इंक्वायरी कमेटी में भी मैं मुख्य था। और जब इस कॉलेज को गया और उसको पकड़ा, उसका प्रिंसिपल ही पूरा जिम्मेदार था। मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, सारा रिपोर्ट दे दिया। उसका मैनेजमेंट हमको कितना चापलूसी किया, आप सुने नहीं। इसका पूरा रहस्य को हमने भंडाफोड़ कर दिया। और जब ये भी मान गया, बहुत पटा करके इनको लिख करके उनका सबूत भी ले आया। और सरकार बोले कि तो ब्लॉक ग्रांट कॉलेज हम क्या कर सकते। मैंने बोला गवर्नमेंट कैन नॉट बी हेल्पलेस बिफोर एनीबॉडी, गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ द कॉन्करेंस, काउंसिल कैन विथड्रॉ द एफिलिएशन, लेट देम स्टार्ट ए ट्यूशन सेंटर। बाद में वो प्रिंसिपल को हटाने के लिए मैनेजमेंट राजी हुआ। ऐसा कई उदाहरण है। मैं मेरे को मालूम है, एक पेपर में आया, गौतम मारांडी करके एक लड़का, आदिवासी, पितृहीन, वो वनवासी लड़का, वो सारे विषय में फर्स्ट क्लास मार्क है, सिर्फ मैथमेटिक्स में 1 नंबर रख करके फेल हो गया। मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेसिडेंट को फोन किया, उनका हेडमास्टर को बोला, हेडमास्टर आया। मैंने बोला ऐसा तो हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 2 दिन तब बाकी था, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर कॉलेज एडमिशन। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेसिडेंट ने, जो बाद में डायरेक्टर हायर एजुकेशन बने, वो मेरे को बताया कि उनका मैथमेटिक्स में 54 है, उनको 1 कर दिया गया। इस इंक्वायरी में पता चला कि 6 लड़कों को फेल किया गया, 1 लड़का को फर्स्ट क्लास देने के लिए। आज तक भी एक स्टाफ सस्पेंड होकर के बैठा इस केस में। सर, मैंने जिद किया कि 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट को रेक्टिफाई किया जाए। करने के बाद मैं इनको लेकर के अच्युत सामंत जी का किस में पढ़ाया, वो लड़का वहां से ग्रेजुएशन किया। ये तो उदाहरण है उड़ीसा में क्या चलता है। उड़ीसा में माल प्रैक्टिस भी है, हाँ, कई राज्यों की तुलना से कम हो सकता है माल प्रैक्टिस है। कितना हजारों उदाहरण में दे सकता हूं ऐसा। सर, अनुचित पद्धति या पदार्थों का अवलंबन, मेरा क्या अवसर मैं नहीं जानना। कभी कभी मेरे को फोन कर देते हैं, सर फलाना कॉलेज में, कोई स्टूडेंट फोन कर देता है, कोई अध्यापक फोन करता है, फलाना कॉलेज में 22 दिन का प्रश्न पत्रों को रख दिया गया है, भेजा नहीं गया। जब इनको हमने इंक्वायरी किया, ऐसा ही हुआ। एक प्रोफेसर को भेजा मैंने, वाइस चांसलर को बोल करके, तब मालूम पड़ा कि 22 दिन का। तब वहां का प्रिंसिपल कैफियत दिया कि हमने पोस्टेज खर्च कम लगेगा इसलिए हमने रखा था। रात को हस्तकर्म करते थे और सारा रिजल्ट कैंसिल हुआ। सर, ये चलता था और आज भी चलता है। जब तक ह्यूमन कैरेक्टर में ऐसा एक्सेलेंस नहीं आएगा, ये चलता रहेगा। टेक्नोलॉजी मानव से बड़ा नहीं है, फिर भी बहुत नियंत्रित हो जाएगा। बेईमानों को विज्ञान के द्वारा हम ईमानदार नहीं बना सकते, भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बना सकते, देशद्रोही को देशभक्त बना नहीं सकते। इसलिए हमको ये जो सत्यपाल सिंह जी ने बोले कि कैरेक्टर एक्सेलेंस को बचपन से डेवलप करना पड़ेगा। सर, कंप्यूटर प्रणाली में जो छेड़छाड़ होता है,
टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता है, प्रिया प्रीति तोषण, आर्थिक प्रलोभन अथवा अन्य आसक्ति के कारण लोक सेवकों के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, परीक्षा केंद्र का दुरुपयोग, दूसरों को परीक्षकों को प्रलुब्ध करने के लिए परीक्षा करके प्रलुब्ध करके फेवर हासिल करना, रिजल्ट प्रिपरेशन, टेबुलेशन और पब्लिकेशन में अनुचित पद्धति का अवलंबन, सब्स्टिट्यूट एग्जाम, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी के बदल में और एक परीक्षा देता था, मैट्रिक परीक्षा में बीए वाला देता था, इसको हमने पकड़ा और ये भागा सर, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पर। ऐसा कई प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। ये भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश का जो नुकसान होता है, मुझे तो कभी कभी इसको देशोद्रोह के समान मानने को इच्छा होता है। सर, संविधान का अपमान होता है। संविधान में सबको न्याय देने के लिए वचन दिया हमारा पूर्वजों ने। ये सामाजिक न्याय, नेचुरल जस्टिस डिनाइड हो जाता है, न्याय व्यवस्था का उल्लंघन होता है, योग्यता का लांछन होता है, अपमान होता है, सामर्थ्य का अपमान होता है, भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन होता है। सर जो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हमारे संविधान में स्वीकार किया गया, इसका उल्लंघन। सर, युवाओं को स्पाइनलेस बनाया जाता है, प्रशासन को भ्रष्टाचार से कलंकित। सर, जो भ्रष्टाचार के द्वारा जो प्रलोभन दे करके मनी पावर अथवा अन्य पावर से आया है, वो तो भ्रष्टाचार को सत्ता के दुरुपयोग करके बढ़ाया गया। सर, दिस विल स्टार्ट ए विशियस सर्किल। इसलिए एक कठोर कानून का आवश्यकता है। यस सर, मैं आपको एक कहानी बनाता हूं। हमारा कर्ण का कितना अपमान हुआ। सर एक कर्ण का अपना योग्यता होते हुए भी इसका अपमान हुआ, ये भी माल प्रैक्टिस है। लेकिन कर्ण ने क्या बोला? दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम च पौरुषम। पौरुष अर्जन कर रहे हमारा अधीन है, किस कुल में मैं जन्म लाभ करूं हमारा अधीन नहीं है। लेकिन ये माल प्रैक्टिस के कारण ये पौरुष प्रदर्शन में भी सबको समान चांस नहीं मिलता है। सर, हमारे जो पूर्व वैदिक सनातन परंपरा में जो परीक्षा पद्धति था, इसमें कॉपी करने का अवसर नहीं था। योग्यता प्रदर्शन ऑटोमेटिक होने की व्यवस्था था। अनुसंधान सत्यानुसंधानी मूल स्पिरिट था। सर, आज भी श्रीमा अरविंद आश्रम में परीक्षा को उठा दिया, क्योंकि ये कॉपी का चांस होता है, इसलिए उठा दिया। एक जीवंत पाठन पद्धति उन्होंने चालू किया। सर, इस विषय में भी सोचा जा सकता है, भिन्न प्रकार की परीक्षा पद्धति। भारत का भविष्य निर्माण करने वाला, नया भारत का निर्माता, युवा शक्ति का पारदर्शिता, दक्षता, निपुणता, योग्यता को प्रदर्शन करने के लिए ऐसा कानून की बहुत आवश्यकता है। कठोर और दृष्टांतमूलक शास्ति विधान की जरूरत है। सर, बिना शास्ति में नहीं होगा। जिस सांप का दांत नहीं होता है उसको कोई नहीं मानता। एक संगठित क्रिमिनल ग्रुप तैयार होकर के सब काम करते हैं। सर, माननीय और मोदी जी के शासनकाल में एक पर एक ऐतिहासिक कानून बनता है, ऐतिहासिक काम भी होता है। नेताजी सुभाष बोलते थे, लेट अस क्रिएट हिस्ट्री, लेट अदर्स राइट इट, वी डोंट हैव एनी टाइम टू राइट हिस्ट्री। ये इतिहास निर्माण करने का एक कालखंड है और मैं इस बिल को समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। सर, हमको याद रखना पड़ेगा, there are many shortcuts to certificates and degrees, there cannot be any shortcut to knowledge. So इस व्यवस्था को कड़ी से कड़ी कानून के द्वारा सुनिश्चित करना यह आज हम सबका दायित्व है। मैं बहुत आनंद से आज ये भाव व्यक्त करने के समय में कहता हूं कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस बहुत सारे सांसदों ने इसको समर्थन किया। ये राष्ट्र हित में है, इसलिए मैं इसको समर्थन करता हूं। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री कल्याण बैनर्जी। Sir, in respect of the public examinations preventions of unfair means Bill 2024. Bill has been brought. Different stages of unfair means have been categorized under clause C of the bill. Sir, what I intend to say is this. All these categories are already covered by still now the Indian Penal Code and also Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which have been passed but has not yet been implemented. And up to today,
wherever, whenever these sorts of activities are being conducted, criminal proceeding vis-a-vis civil proceedings are being drawn against them. Sir, consistently I am saying for last few years that in our country there is no deficiency of laws covering its criminal activities. No deficiencies there. But the problem is the implementation. Law is passed from this parliament. It's a parliament's wisdom it is passed. But ultimately it has to be implemented by the implementing agency. That is the greatest failure in our country today. Still I am saying I am not objecting any of the things. But still I am saying this is all are covered. See, clause 15 of the bill. Clause 15 of the bill is saying, these provisions of the Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the timing in force. Therefore, existing laws are there. You are categorizing more category, subcategory, another mini subcategory. But in a broader sense, it all are there. The question is whether the central government has taken steps in respect of this maladministration wherever it has been done and these offences have been committed. Through you, sir, I want to know from the Honorable Minister, for last 5 or 10 years, in how many cases the central government has implemented it. Law has been implemented, prosecution has been done, conviction has been made. This is I have a request to this answer should be given. No one indulges these types of activities. But the point remains, there are sometimes something is said which is very attractive. It goes well in the ears. Question is, it is established. In our country today, unfortunately, we are go by media trial. In any sensitive criminal cases, media trial. Everybody is facing. Whether it's a central government, whether it's a state government, whether it's a central minister, whether it's a state minister. They prove it before the case is started. Consequences has to be followed naturally. Public criticism, this man is bad, that man is bad, this minister is bad, that minister is bad. But I don't believe in that. Until it is proved and it is established. Country is going on in that way. I will request the Honorable Minister, all these ministers are here. Whenever a criminal case is there, court is seizing over the matter, public trial should be stopped. Anyone has been made accused, not only accused, he has been made criminal, etc. At the moment. Let's take a case. A minister activities is involved. Nobody knows whether it has been done or it has not been done. Public trial is done. A minister's relative is involved. Immediately it is taken in that way in the media trial. This gentleman is a relative of any minister. Therefore, this media trial ruin his career. I will request the honorable ministers, please think about this also. Ultimately, justice is not done. Justice has to be done. Justice has to be done in their cases. Yes, whether he has really indulged malpractice, whether he has done anything, whether anyone has really done the criminal activities or not. So someone has said, I was not here, I have been told, that scam of Bengal of the teachers' appointment, employment. Sir, I just tell you.
Some allegations who are coming, almost all in these cases you will see in future, all these unsuccessful persons comes. Unsuccessful persons come, lodge complaints against the successful persons. This is the scenario. After 4 years, 5 years, 6 years, they are coming. In West Bengal also, some unsuccessful persons have come. One of the single judge of the Calcutta High Court, by a judgment, terminated 32,000 private primary teachers, 32,000, and directed to start de novo selection process. Matter went on appeal. Appeal court stayed that termination, but directed to continue the selection process. Went to Supreme Court has set aside the entire order. This is because of all this media trial. No evidence, nothing has been established. If you speak about a story of a scam, but scam is established as if. In another case, the same learned judge, 15,000 teachers and employees service have been terminated. 9, 10, 11, 12, C and D group went up to the Supreme Court. Supreme Court has set aside that. Because principles, laws have not been followed. Follow the principles of law. I am not saying for a single moment any malpractice, whenever any malpractice is there. I am not saying that if any malpractice is there, no steps should be taken. Steps should be taken, but it should be in accordance with law. Not because of saying someone's. There must be a concrete proof. Before you reach into the conclusion, this is the malpractices have done, there must be an established fact, concrete evidence, not because of saying of someone. Today is in the social media, we are here. Anybody can lodge any complaint against anyone and steps are being taken on that basis. It cannot be done. It cannot be done in this way. Therefore, sir, what I am saying, suggesting, you see, so far clause 3 is concerned, it is having a two effect. The Honorable Minister, please. Sir. Here. Oh, sorry. Jitendra Singh. Sorry, I'm very sorry. Jitendra Singh. Sir, I'm very sorry. I'm sorry. Sir, this clause 3 is having two consequences. One is criminal consequences. Another one is civil consequences. The moment it comes, some malpractices have been done. Now take it for 2,000 students are there or 2,500 persons are there. 2,500 are scratched, but 2,500 have not done it. Maybe 100 has done it, 150 has done it, maybe 150, 200 has done it. The problem in the country is this. Whoever the investigating agency or the inquiry committee is there, without identifying that 200%, 150 and 200%, coming up with the reports and etc., as if 2,500 persons are involved in this. This is not a justice. All students cannot be said to be dishonest. I'm sorry, I am not agreeing. All persons cannot be said to be dishonest. Dishonest may be there. There may be 1% or 2%. Our young generations are brilliant. Our young generations are honest. Our young generations are sincere. Our young generation will develop our country. We believe and we are having a trust. But if there is 1 and 2%, segregate it, please. I don't find anywhere any process, whether CBI comes, whether any investigating agency comes. I have a number of experiences there, whether it's in the railway or it is in the other places. Only one report is coming, but segregation is not there. For committing one's criminal activities,
The rest should not suffer. This central government must look into that. Whoever is the agency, whoever is conducting, please, you apply your mind, look into the matter, segregate it. Please do not go on the basis of the media trial. And few judges are there also nowadays in our country. They are not required to law. They only here in the evening they show, they are watching the TV show. Morning reading the newspaper. Yes. Deciding the matter on that basis without adhering to the established principles of law. With this, I say, of course, the provisions are good. It has been made. And it is in addition to think about this. Now, one clarification I need it from the Honorable Minister, please. Since you have said in addition to, if the imposition of the penalty are different, let's assume here it is 1 year, and in that it is 3 years. What would be happen to that? Which law would be followed? Which law would be followed? That's with this, sir. I extremely extend my thanks to the Honorable Chairman, and also I have conveyed possibly my whatever I have to say to the Honorable Minister. Sorry, kindly, I have just missed. I am sorry. Do not mind, please. No, no. Okay. Thank you. Honorable Member, C.E.T. Mohammed Bashir. Sir, thank you very much. Sir, with regard to this bill, the intent and the content seems to be good. If some amendment is required, that can be done. There was elaborate discussion on this. Hope that the minister will include that kind of suggestions. Similarly, sir, this is like a model act. It's going to be a model act. States can have its discretion. There it can be improved. Various states have made separate law. Like Karnataka, they have got a different law. This seems to be, I gone through that, it seems to be good. So what I'm saying is, the need to examine the examination system and ensure the credibility is the need of the hour. It's a very important thing. Now, we all know that during the examination season, there are a lot of scandals. Reports are coming in a very, very painful manner. Sir, in my hand, this is a comprehensive survey conducted by Indian experts with regard to leakage. It's a big document. I cannot caught within the time frame. This says 15 states leaks of the paper in 41 job recruitment examination. Sir, it's a big list. So we can very well imagine how much havoc it will be played in our country. So this requires immediate attention. So what are the solutions? Learned friends were saying technology application will help up to some extent. For all the technology, there are some risks. Even artificial intelligence also, there's a risk part. We understand that. But in spite of all these things, in the examination centers, whether it is in the universities or any other public institution, PSU, wherever it may be, this kind of improvement through technological application may help us to tide over the difficulties. Now I am coming to the university side. I had been education minister in the state of Kerala. Sir, you were also very instrumental in making the system perfect. Sir, 1,100 universities, 50,000 affiliated colleges, including 700 autonomous colleges and 40.15 million students. It's a big thing. So there is a lot of inconsistencies, a lot of irregularities, especially as mentioned in this act, fraud, leakage, and that kind of thing, corruptions. It's a matter to be addressed very seriously. Sir, examination reforms, that only is the best way. Now what is happening?
Kerala, we made a model, sir. Instead of examination once in a year, we made continuous evaluation. Continuous evaluation, and instead of learning everything from the textbook and learning it by heart and then sitting in the examination hall, that is not the way of doing that. It used to be comprehensively restructured. Sir, it is learning in by heart is an easy thing, but his talent will have to be measured. That is not happening. Unfortunately, the system now working is what? It is not student-centered, sir. It is textbook-centered. It is teacher-centered. Ability of the student, that has not been considered. So instead of this instructivism type of examination, it should be constructively like that, constructive type of education. So the other thing, autonomous college. Autonomous college was a board initiative. But there also I suggest, if I am subject to correction, Tamil Nadu may be the first state in India which introduced examination in the autonomous colleges. After that, I think Andhra Pradesh, Kerala come 3 or 4th state. Sir, they deserve some kind of liberty, freedom in formulating the courses and all kind of things. But a supervision on the part of the government is required, I think. From the practical experience, we must encourage autonomous colleges. That will have very good impact in our education system. But at the same time, in order to ensure the credibility, government must have a scrutiny over that. It's not, I am not saying that kind of titan kind of things. That is one thing. So I don't want to spend much of the time. Yes. The other thing, sir, one thing is very sure. What is happening? Politics, of course, is there. As correctly mentioned by my learned friend, some kind of media kind of story, fabricating kind of thing, that also is there. But we have to be convinced ourselves that the system is working properly. This is an effort to that. So what I'm suggesting is, very healthy discussion had taken place in this house. Academicians who were participating in the discussion. I hope that the Honorable Minister will follow that and try to make adequate changes or modification in this bill itself. I hope that this is an eye-opener as far as the credibility of the system is concerned. I hope that government will take very urgent steps. One thing in the answer, reforms. When we are planning reforms, even in the case of examination or whatever it may be, it should be in a speedy manner. Sir, this is the internationalization of your education and other things. We have to be in the fast track. If we go slow, we will be in the sideline. So what I am suggesting is, if we want make change the things, we must travel in the fast track. We hope that government will keep this also in the mind and make adequate modification. With this few words, sir, I conclude. Thank you very much. Thank you. Honorable Member S. M. Masoodi. Masoodi. Thank you, sir. Thank you for allowing me to speak on the public examination prevention of unfair means bill 2024. Sir, I stand in support of the bill. I congratulate Honorable Minister Dr. Jitendra Singh for bringing this bill, and it tells us that cognizance has been taken on a problem, a grave problem that has of late assumed menacing proportions. Sir, this is a timely step taken in the right direction. Honorable Minister said that this is second important piece of legislation after Women Reservation Act, the law which provides reservation for women. But I take it, it's my personal view, it is much more important than that, because that delays the implementation. We don't know, after a decade or so, the benefit may reach the target group, but here it is instant, and we know that the results of this bill
will be available only immediately after the rules are framed, and I expect that rules will be framed immediately after the bill is passed. Sir, the statement of objects and reasons spells out the objects of the bill. It is the object. It is the object is to enhance transparency in examinations for recruitment, and also that is very important. Also, admission to higher education institutions, because the problem would not only plague the recruitment, but also the admission to higher education institutions. So the bill is well drafted. The definition clause I have gone through, I mean, it is well drafted, and the definition of unfair means is inclusive, and the bill is expected to have the results that are intended. But, sir, we should not stop on with this bill, because I believe that the recruitment process as well as the admissions, in particular the recruitment process, calls for a holistic approach. Sir, we can, if we have transparency in the exam, that is not the end game. There should be, we should take steps to provide a level play field across the country. The bill encourages the states to have a similar legislation in the states, but the effort should be to have a level play field, and what can be done to achieve that level play field. For someone who does not have the level play field, transparency in examination in recruitment process does not mean anything, because he has to he has to compete with someone who has an advantageous position, who belongs to a different strata of the society. So I don't know what steps would be taken, but I expect Honorable Minister to just have his attention towards this providing level play field as well. Then we should try to integrate ICT tools, because ICT tools, without this personal intervention, ICT tools are more objective and more fair, and raising less suspicion in examining this process. I don't know to what extent, but I think we should try to have the ICT tools integrated with the recruitment process. And then, sir, the problem that was highlighted by one of honorable members is that the cancellation of exemption should not push the candidates who have appeared in the examination to uncertainty. There should be a statutorily provided period for having that examination conducted once more. Maybe 2 months, 8 weeks, or maybe 12 weeks, depends on how you can organize the logistics, but it should be statutorily fixed. We should not leave it to the individual authority or individual commission or individual body to fix the examinations. It should be statutorily fixed so that we have the examination and there is an opportunity, because we know the examination delay and cancellation of examinations results in delays, and it creates bitterness and bitterness amongst the youth, unemployed youth. So it should be in a time frame so that they have not to. It's not a wait that is endless. So they have an opportunity. Second is that, sir, after this whole exercise, we should statutorily also provide for this wait list, because after such an exercise, because I have come to know some students met me in Jammu. They said, some candidates met me in Jammu. They said that the local administration has done away with this waiting list, because if somebody has put his labor and he figures there are 108 posts, for example, and he is figures at 109. So if people shop for the jobs, they are hopping from one place to another place. So most of the people selected, the candidates also leaving way for the waiting list. Yes. So we should have a statutory percentage as well as the period for that wait list to be operational. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Sri N.K. Premendra. Thank you very much, sir, for giving me the chance to take part in the discussion on the bill. It's a very important bill according to me. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Bills 2024.
Sir, my first suggestion to the Honorable Minister is kindly send this bill to the Parliamentary Standing Committee for close scrutiny of the bill. Because the bill is against the basic principles of criminal jurisprudence. As rightly pointed out my learned friend just now, there is no substantive law for the public examination, the conduct of the public examinations. Already there is a law, but you are bringing a substantive law so as to combat the issue, so as to address the issue. I fully support. But if you go through the bill, the drafting of the bill, the content of the bill, it can very well be seen that it is against the principles of criminal jurisprudence. I will explain it one by one. Sir, what is the intent of the bill? Intent of the bill, I fully agree with them. There is no bad intention on the part of the government in bringing such a punitive bill that is giving more punishment, grave punishment for the malpractices in the public examinations. Transparency in examination for recruitment as well as admission to higher educational institution is highly essential. It is need of the hour. Yes, at present there is no specific substantive law to deal the unfair means or offences conducted by the various public examination agencies. So, sir, there are 20 offences and unfair means have been identified in this bill. It is including impersonation, manipulation of answer sheets, and also tampering with the documents. All these things will come within the purview of Indian Penal Code. Specific offences are there in the Indian Penal Code, but you are coming with a substantive law, there is no problem. But you see the quantum of punishment being provided in the bill is disproportionate. That is the first objection which I would like to make. Because the imprisonment which you have mentioned which you have given for each and every unfair means is 3 to 5 years. Unfair means, if any unfair means is adopted, it is 3 to 5 years. It is if it is done by an individual, and it will be up to 5 to 10 years if it is an organized crime. Sir, there lies the quantum of punishment. For example, unfair means is, what are the unfair means? It is explained in clause 3. Sir, you kindly go through subclause 8 and subclause 12 of clause 3. That is, subclause 8, willful violation of norms or standards set up by the central government or conduct of an examination on its own through its agency. So what are the norms to be stipulated? If any violation of any norms, he will be given a punishment for 3 to 5 years. Any officials can be targeted. See, violation of the norms, basic deviation from the violation of the norms, the quantum of punishment will be 3 to 5 years, and the punishment penal fine will be more than up to 10 lakhs rupees. And if it is organized, that will go up to 1 crore of rupees, and the imprisonment will be from 5 to 10 years. And similarly, if you go through subclause 12 of clause 3, manipulation in seating arrangements, you kindly see that definitions are very exhaustive. It can be interpreted in any way. If you are preparing in the seating arrangements of the students and allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means on examination, then also this quantum of punishment is too much. That is why I am requesting the Honorable Minister have a close scrutiny, legal scrutiny of this bill so as to have a proper criminal jurisprudence in the bill also. Otherwise, it will be totally disproportionate. Suppose a student just copying or having a murmuring with the neighboring student, then the punishment is too much. This is totally disproportionate. That is the reason by which I raise my objection. And regarding the legal drafting also, kindly go through clause 8, subclause 3, the proviso. The proviso to subclause 3 of clause 8, that is offense is stated, then you are saying that provided nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment under this act if he proves that the offense was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offense. Sir, it is the basic criminal jurisprudence. Why should it be put in there? If he proves that it is without his knowledge, this act was done and he has acted everything and he has applied his mind in due diligence, why should this proviso is there after putting the punishment? The same, madam, the same thing is being repeated
in clause 4 of clause 10, subclause 4 of clause 10, nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under the act if he proves that the offense was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such an offense. What does it indicate? That means if he proves that you are innocent, you will be, that nothing will be applicable. Why this proviso is being incorporated in a bill, such a very important bill, for which also I have given 10 amendments to this bill. Kindly go through the amendments. Most of them are harmless amendments that has to be looked into. That is why once again I am requesting to the Honorable Minister that all this unfair means, since the paucity of time, I'm not going to explain all these things. You go through clause 3, almost all the provisions, if you directly or indirectly assisting the candidate in any manner, unauthorizedly in the public examination, then you will be punishable with 3 to 5 years of imprisonment. So this is the way by which the definitions and unfair means are being described. This definition and unfair means is very exhaustive, can be interpreted in any manner. So that has to be re-looked into. I am not doubting the intention of the government to address this issue, but at the same time, these reservations has to be looked into with a close scrutiny. With this words, I conclude. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to speak on Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. मैडम, बिल जो है ये इस देश में बहुत बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए बिल आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी नियत से ये बिल आया है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि देश भर में विभिन्न राज्यों में जिस तरीके का नकल माफिया एक्टिव है और वो उनको कहीं ना कहीं, मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नकल माफिया है जो देश के अंदर ये काम कर रहा है। और मैं राजनीतिक संरक्षण इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण तो माफिया है ही है, चलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि इस देश के नौजवानों को रोजगार ना देना चाहती है। पर नौजवान जो है, छात्र जो है, वो साल 2-2 साल पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, और उसके बाद क्या होता है, परीक्षा में बैठता है, पता चला साहब कहीं से पेपर लीक हो गया, पूरे की पूरी परीक्षा रद्द हो गई, फिर उसका कोई डेट नहीं कि कब दोबारा परीक्षा होगी। सभापति महोदय, हजारों की संख्या में नौजवानों ने खुदकुशी की है, जिन्होंने पूरा अपना कई वर्ष लगा दिए तैयारी में, लेकिन वो परीक्षा ही नहीं हो पाई। मेरा ये भी कहना है कि ये बिल जो है, जैसा प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि वाकई कहीं ऐसा ना हो कि जो इसमें कुछ क्लॉजेस हैं ऐसे कि अगर कोई बच्चा अपने आप से देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, पता चला उस स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट किया जा सके, क्या आगे जाए, तो इसका ये दुधारी तलवार भी साबित ना हो कि आने वाले वक्त में जो भी सरकारें रहें वो फिर उन स्कूल, कॉलेजेस पर, उन इंस्टीट्यूशंस पर इतना दबाव ना बनाए कि वो उनका मिसयूज कर सके। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी बहुत जरूरत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में तो खास तौर से क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले वर्ष जो है नकल करते हुए एक अखबार के रिपोर्टर ने एक्सपोजर कर दिया, तो पता चला कि उसी को जो है उठा करके जेल भेज दिया गया। जो माफिया है वो इतना स्ट्रांग है कि उनकी करतूतों को अगर कोई एक्सपोज करता है तो वो उनके खिलाफ जो एक्सपोज करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, उन पर कार्रवाई कराते हैं, उनको जेलों में भिजवाने का काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूंगा कि ये वाकई अच्छा बिल है, लेकिन इसमें
कुछ जो क्लॉजेस है, अगर बाकी इसको और डेलिब्रेशन इसमें किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी को आप भेजें तो और अच्छा रहेगा। एक कॉम्प्रहेंसिव अच्छा बिल आए जिससे नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। नौजवान जो वर्षों वर्षों तैयारी करते हैं अपनी परीक्षा के लिए और उनको अंतिम आखिर में जो है उनको निराशा हाथ लगती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय के जया कुमार जी। अच्छा अच्छा। Honorable Madam Oh, Speaker, Jai Kumar. thank you very much for the opportunity. For a change, a bill has been brought in Time हो गया। to get the appreciation of the opposition parties also. I've been watching the deliberations going on here. Almost all members who spoke ahead of me have appreciated this bill. We should appreciate Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister, for this. Sir, at the same time, I would record my personal views that you are very late. We are all aware that what is happening in the country at various parts of the country. Some of the members have also mentioned that what is the size of this scam? How many states have suffered due to this? How many young lads have sacrificed their opportunities because of some scamsters coming in? If you see the types of scams, it is largely the outsiders coming in and doing this. Rarely the students or those who are taking up the examinations involved in this. Just to make quick money or fraudulent money, they got into the system and they spoiled the system and to earn money in a fraudulent way. I appreciate once again that you have realized the seriousness of this and you have brought the bill. At the same time, I join with our learned member, Mr. Hemachandran ji here, that he had pointed out quite a few changes, which I feel is quite legitimate to have this. I have also seen some of the gaps or lacuna in this bill. One is that it does not provide solution straight away. Suppose if the examination is cancelled because of the scam, that batch of students had to wait for a very long period and they have no way to go out. They studied for these tough examinations for 6 months and 7 months, but another 7 months, 8 months, 9 months, indefinitely they have to wait for the government to come up for new set of examinations for those students. Therefore, I feel that there should be an option which is acceptable to the students community or those students who are appearing for these examinations. Another thing is that the accountability of those officers of the examining agencies. I have seen it to an extent possible. I wouldn't say I have gone through very thoroughly. And here again, there is nothing mentioned about the people at the helm of affairs who are responsible for it. Most of the large-scale scams in this particular regard has been done with the involvement of the highest people sitting in the affairs of those matters. Therefore, I plead that those people who are sitting up to the higher authorities should be investigated, involved, and solution to be found. This is my one of the suggestions. Sir, another strange thing I see, I know it is for good or bad. Normally, any law you bring in, that is what I have been watching in this house. You always bind the state governments. Take up any law, whether it is an agricultural law, or it is CAA, or any kind of laws passed, plenty of laws passed in this house. You always tie up the state government. I don't understand why you have taken a different route for not to get involved the state governments or not binding it on this. Therefore, this is another thing I want to put it into your mind. Sir, another simple point, one of my earlier speakers here has mentioned, why this tendency of doing wrong things is happening.
Why these unfair practices are taking place? Who is responsible for this? We should find the reason for it, because we have to eliminate those reasons. These reasons come from primary level or high school level, and the students who are not getting prepared, who are looking out for a escape route to go in those ways and all. Particularly from the primary level onwards, we should provide a better education, a better discipline. I am one example for it. It never came into my mind to adopt any unfair practices in the exams. Sir, I have not passed up in some of the exams. I mentioned this, I disclosed this. When I am in a prepared situation, I take the exams. When I know that I will not and I cannot pass this exam, I prefer to stay out rather than getting into any shortcut methods. So such kind of good habits, such kind of ethics should be inculcated in the generation itself, that the bad practices should be avoided. Sir, I try to mention here in this regard only, our Honorable Chief Minister, Government of Tamil Nadu, Mr. Stalin, is going step by step to see the welfare of the students. One of the cornerstones he has turned down is that he had brought in for the first time in the country breakfast system to all the elementary school children. From class 1 to class 5, for about 31,000 schools, about 17 lakh children are taking breakfast, because without breakfast, many children could not go to the school. They stay at home. The attendance in the school is coming down. To see that at the primary level itself, entire country, state students should be educated. This breakfast system is introduced. This is one of the system I just mentioned. There are several educationists there, intelligence people are there, academicians are there. Please, to get the bill piloted, consult with them and take their course in this. Thank you very much. श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज मुझे लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मंत्री श्री जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत लंबे अरसे के बाद 1944 में कोई बिल इस प्रकार का आया होगा, और उसके बाद परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों के लिए कोई बिल आया है तो बहुत लंबे समय के बाद में आया है, 80 साल के बाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे सबसे पहले तो इस बात की प्रसन्नता भी है और एक एहसास भी ऐसा हुआ है कि ये की चर्चा की है। लगातार 5 साल के अंदर 17 पेपर लीक हुए, और मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, सीकर से, कोटा के बाद में यदि कोई एजुकेशन हब है जहां 2 लाख स्टूडेंट पढ़ता है, और स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ में बड़ी बड़ी कोचिंग है, एक एक कोचिंग के पास 40-40, 50-50 हजार विद्यार्थी हैं। माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा, कई साथियों ने यह शंका व्यक्त की थी कि इस बिल में कहीं विद्यार्थी तो हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन विद्यार्थी तो नकल अंदर बैठ करके क्या कर सकता है। समस्या इस बात की थी कि विद्यार्थियों के ओट के अंदर इस प्रकार की संस्थाएं जो नियोजित तरीके से नकल करवाती थी, और इसलिए राजस्थान के अंदर तो एसआईटी गठन करनी पड़ी है, और 20 से अधिक लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, और एक लंबी श्रृंखला है। एक से एक व्यक्ति, एक से के 4 जुड़े हुए हैं। किसने पेपर को लीक करवाया, किसने कहां पर पहुंचाया, किसने कैसे जोड़ा, तो ये एक सिलसिला बन गया इस प्रकार का। और
आवश्यकता बहुत जरूरी इस बात की थी कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, मैं देखता हूं कि बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षार्थी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में वो गरीब बाप जो अपने बच्चे को पैसा देकर के पढ़ाता है, मेहनत करता है। हमारे यहाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड किया। वो बच्चा नोट लेकर के गया कि मेरे पिता ने मुझे 2 साल पढ़ाया, मजदूरी करके पढ़ाया, जमीन पर लोन लेकर के पढ़ाया, लेकिन मैं जब एग्जाम देने के लिए गया तो मुझे सूचना मिली कि पेपर आउट हो गया। हमारे हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील का एक छात्र था, उस छात्र ने सुसाइड नोट में ये बात लिखी। तो कितने सारे इस प्रकार के अपराध होते थे। और इसमें एक कारण और था, मैं आपसे निवेदन करूं, न केवल मात्र नकल की बात है, बल्कि इसमें योग्य व्यक्ति तो रह जाता था, अयोग्य का चयन होता था। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता था, प्रशासनिक सर्विस को देख लीजिए आप। प्रशासनिक सर्विस में कोई अयोग्य व्यक्ति जाएगा, वो न्याय नहीं कर सकता। कॉलेज लेक्चरर है, कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, वहां अयोग्य व्यक्ति जाएगा तो क्या पढ़ाएगा। तो एक तो अयोग्य व्यक्ति का सिलेक्शन होने का नुकसान ये होगा कि देश को नुकसान होगा। देश को जिस प्रतिभा की आवश्यकता थी, जिस अच्छे योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, वो वहां नहीं पहुंच पाया। दूसरा, योग्य व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ, वो पीड़ित हुआ है, तो उसकी पीड़ा को दूर करने का कोई साधन नहीं था। तीसरा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। तो इससे क्या हो गया कि उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा जो व्यक्ति योग्य है, जिसने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, और जो उसका हकदार था उसको वहां पर पहुंचाने के लिए हक मिलना चाहिए था, उसको हक मिलेगा। साथ में कई साथियों ने कहा कि साहब इसमें दंड की प्रावधान अधिक है, लेकिन हमारे यहाँ तो शास्त्र स्पष्ट कहता है, दंडम शास्यति राजम, भय बिन प्रीत नहीं जगमाही। बिना दंड के कभी शासन नहीं चलता है। दंड के भय से ही व्यक्ति अनुशासित होता है, और अनुशासन के बिना कभी भी व्यवस्था बन नहीं सकती। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को प्रयास किया जाए कि स्टेट को भी प्रेरित किया जाए, क्योंकि जो मूल है वो स्टेट के अंदर है। सेंटर में तो जितनी भी परीक्षाएं हैं, यहाँ माननीय मंत्री जी ने इस पेपर में दर्शाया है बहुत सारे एग्जाम को, कि इन एग्जाम के अंदर हम ये प्रयास करेंगे। यहाँ पर माने इस पेपर के अंदर ये लिख दिया गया है कि जो परीक्षाएं हैं जिनसे संघ लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण है, और अन्य ऐसे प्राधिकरण जो एग्जाम लेते हैं, ये सेंटर के प्राधिकरण है। लेकिन स्टेट के अंदर जो स्थिति है, अभी राजस्थान के अंदर एसआईटी का गठन किया और वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि हम भी इस प्रकार का बिल लेकर के आएंगे। मैं तो सभी स्टेट के लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, स्टेट की सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, वहां भी इस प्रकार के बिल आने चाहिए, ताकि ये जो नकल का धंधा चल रहा है और जो ये इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये समाप्त किया जाए और योग्य व्यक्तियों का चयन हो। तो मैं पुनः, क्योंकि बहुत सारी बात लीगल भी बातें लोगों ने कही हैं, और भी शंकाएं थी, वो व्यक्त की हैं, उनका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक अच्छा बिल लेकर के आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी तो मेरे क्षेत्र के अंदर 2 लाख विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनको होगी कि आज भारत सरकार ने हमारे बारे में सोचा है, हमारे भविष्य के बारे में सोचा है। और प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है 2047 का भारत, वो तभी अच्छा भारत बन पाएगा जब योग्य व्यक्ति वहां पहुंचेंगे, और वो तभी पहुंच पाएंगे जब निष्पक्ष दृष्टिकोण से परीक्षाएं होंगी, ठीक व्यवस्था होगी, अनुचित संसाधनों को रोका जाएगा। तो पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। श्री एसटी हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इस इम्पोर्टेंट बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। इस बिल की अति आवश्यकता थी जो आज आप लेकर आए हैं, और मैं समझता हूं इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव यही है कि एबल स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। नकल माफिया इस कदर एक्टिव है कि बाकायदा ठेके होते हैं कॉलेजेस के, कि 10,000 रुपए पर स्टूडेंट से लिया जाता है, पास कराने का ठेका होता है। नकल माफिया सीढ़ी लगा के खिड़की पे जब पहुंचते हैं, और उस कैंडिडेट की सीट भी खिड़की के पास होती है। तो ये बिल आने के बाद मैं समझता हूं इन तमाम चीजों पे लगाम लगेगी। मैडम,
आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो एम है कि अच्छे स्टूडेंट को इंसाफ मिले, एक पूरी फील्ड हम इसमें भूल रहे हैं। हमने कॉलेजेस के अंदर ये बहुत शिकायतें देखी हैं कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट से नाराज हो गया, भले से कितना मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, वो फेल हो जाता है, या मैनेजमेंट नाराज हो गया तो फेल हो जाता है। वाइवा जैसी चीज जिस पे कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता, वाइवा को भी मेरी ये डिमांड है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर किसी को फेल करना होता है तो एग्जामिनर उससे अपने बाप का नाम पूछता है, और अगर पास करना होता है तो उसी के बाप का नाम पूछता है। ये बड़ा विचित्र मामला है। अगर इस चीज पे भी हमारे मंत्री जी ध्यान दें कि अदर मीन्स कौन कौन से ऐसे हैं जो अनफेयर हैं, तो शायद मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पूरा इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी इसी बात के साथ इस बिल के समर्थन में हूं और धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को कि इस बिल की बड़ी सख्त जरूरत थी जो आज लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री इम्तियाज अल जलील जी। The Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 देर आए दुरुस्त आए। मैडम, अगर ये बिल आज से 5 साल पहले अगर आ गया होता तो 1,40,00,000 बच्चे जो सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, महज 1,04,000 नौकरी हासिल करने के लिए 1,40,00,000 बच्चे जो दिन और रात मेहनत किए, पढ़ाई किए, एग्जामिनेशन के अंदर बैठे, बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया था, एग्जाम कैंसिल हो गया, कई बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बैठ नहीं पाए क्योंकि उससे पहले ही पेपर लीक हो गया था। अगर 5 साल पहले ये बिल आ जाता तो इन्हें इतना खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा होता। सवाल यह है कि 1,40,00,000 नौकरियों, 1,40,00,000 बच्चे, नौकरियां कितनी? तो 1,04,000। अगर ये पूरे के पूरे चले भी जाते तो 1,39,00,000 बच्चे तब भी बेरोजगार रहते। आपने इस बिल के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है, जिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ऐसी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसको इस बिल के दायरे के अंदर लेकर आए हैं। हमारी ये मांग है कि जो राज्य सरकार के जो प्रमुख एग्जामिनेशंस होते हैं उनको भी इस बिल के दायरे के अंदर इसलिए लाना जरूरी हो गया है कि कई राज्य सरकार के नेताओं और कई राज्य सरकार द्वारा ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इसीलिए इसको इस बिल के अंदर उन्हें भी लाना जरूरी है। ये जो बिल आया गया है इसमें हम मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इसके लिए सजा का क्या प्रावधान तो बताया गया है, नो स्पेसिफिक प्रोविजन। दूसरा ये है कि डिबारमेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस, इसके लिए क्या प्रावधान है सजा का, तो नो स्पेसिफिक प्रोविजंस। तीसरा ये है कि चीटिंग और यूज ऑफ अनफेयर मींस बाय एन एग्जामिनी, कि अगर जो एग्जामिनेशन पेपर सेट चेक कर रहा है उसके खिलाफ अगर वो कुछ बेईमानी करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान सजा का, तो नो स्पेसिफिक प्रोविजंस। तो हम मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस है ये बताए करके। मंत्री जी ने जब अपना ये बिल को पेश कर रहे थे तो स्वाभाविक है आपके विरोधी राज्य जो है उन्हीं के बारे में आप जिक्र करेंगे। आपने राजस्थान का जिक्र कर लिया, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लिया, लेकिन क्या बेईमानी आपके राज्यों के अंदर जो हो रही है उसका जिक्र नहीं करेंगे आप? मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं महाराष्ट्र के अंदर कितनी बेईमानियां हुई है। टीटी का एग्जामिनेशन, क्या होता है टीटी का एग्जामिनेशन? चेयरपर्सन मैडम, टीटी का एग्जामिनेशन होता है कि जो टीचर बनना चाहते हैं उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक घोटाला हुआ, एक एक टीचर से 4-4 लाख रुपए लिया गया। पुलिस का कहना है कि 240 करोड़ रुपए का घोटाला है। शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर चुका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टीचर बन रहे हैं वो पैसा देकर टीचर बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर कौन कौन से घोटाले हुए हैं? टीईटी एग्जाम घोटाला, म्हाडा एग्जाम घोटाला, महाज्योति एग्जाम पेपर लीक, तलाठी भर्ती घोटाला, मुंबई पुलिस भर्ती घोटाला, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जाम घोटाला, और पढ़ूं तो बहुत सारी लिस्ट है। ये आपको नजर नहीं आ रहा है? मेरा तो ये कहना है कि जहां जहां पर भी ये घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये है मंत्री जी, जो बच्चे एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं,
एक एक ग्रामीण इलाके का, रूरल एरिया का बच्चा 6-6 एग्जाम के अंदर बैठता है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, उससे आप पैसा लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस, एप्लीकेशन की फीस लेते हैं। क्यों इन्हें माफ नहीं किया जा रहा है? एक तो आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, और जो बच्चे 6-6 एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं उनसे है तो पैसा। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा देश के नौजवान बच्चे आज सदन की तरफ नजर लगाए हुए थे। अभी तेलंगाना के अंदर ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 1 जुलाई के अंदर घोटाला हुआ, कैंसिल कर दिए। 3 महीने के बाद फिर होने वाला था, फिर घोटाला सामने हुआ, कैंसिल कर दिए। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, अब एग्जामिनेशन ले नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन आ गया। मेरा ये कहना है कि बच्चों के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज अगर वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी यहाँ सर उठकर चले गए हैं, उन्हें उर्दू अच्छी तरह से आती है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आज पढ़े लिखे बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ो फारसी और बेचो तेल, ये हालत हो गई है। हाईली क्वालिफाइड बच्चे आज क्लर्क की, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का भी एक डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हुआ है। हो गया आपका समय। एक मिनट मैडम प्लीज। 64 पोस्ट है, 64 पोस्ट है, उसके लिए 9000 बच्चों ने एप्लीकेशन दिए। तेलंगाना का जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं 500 पोस्ट है, अप्लाई कितने किए हैं? 3.5 लाख बच्चे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आंकड़े आपके ही है, आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को तो क्लियर कर दिया है, नौकरियां कितनी है ये बताइए। 2022 के अंदर इसी लोकसभा के अंदर रिटर्न रिप्लाई के अंदर ये बताया गया था कि द रश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स कंटिन्यूड अनअबेटेड ओवर द लास्ट 8 years, but less than 1% of applications received were selected. मैडम, स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 8 साल का जो आंकड़ा है, 22 करोड़ नौजवानों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किए। 22 करोड़, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। 22 करोड़, उसमें से नौकरियां कितनी मिली है? तो महज 7,22,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली है। अच्छा बोल रहे हैं। 22 करोड़ कहां पे है और 7 लाख कहां पे है? उसके बावजूद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैडम स्पीकर, कल हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, 2 घंटे तक वो बोलते रहे कि कितना अच्छा रहा है करके, हमने मंदिर बना दिए, हमने ये बना दिए, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे। मोदी जी की गारंटी है करके जब उन्होंने कहा तो आप सभी ने तालियां बजाए, बेंच को बजा बजा कर अपने हाथ दुखा दिए। क्या मोदी जी की गारंटी यहाँ के इस देश के सब कुछ का? जी जी जी, बैठा जा, प्लीज बैठा जा, चले। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 घंटे का भाषण था और हम सब उस भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और एक के बाद पिछली घटनाएं, कई चीजें जो 60-70 वर्ष में हुए उनके बारे में, फिर किस प्रकार से सुधार का वातावरण, किस प्रकार से हर क्षेत्र में जो पिछले 10 साल में हमने पूरा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, किस प्रकार से आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि हम कहां कहां बढ़े और कैसे कैसे बढ़े। तो इस एरा के सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट के रूप में, इस एरा के सबसे बड़े नेता के रूप में हम सब लोगों ने थपथपी बजा के उनका, और जो उनका अंतिम बयान था, जो शायद हमारे विपक्ष के लोग उस बात को सुनने से थोड़ा परहेज करते थे, उन्होंने कहा कि आज भी हम तैयार हैं, आप हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के चलो और आने वाली पीढ़ी के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और उनका एक और शब्द कि तुम चाहे जितने पत्थर हम पर चलाओ, उस सभी पत्थर को भारत के नवनिर्माण में उसके नींव में इस्तेमाल करें। और उसके बाद से आज ये एक ऐसा विधेयक लाया गया है जो पब्लिक एग्जामिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी संदर्भ को देखते हैं, किसी भी समाचार को पढ़ते हैं, किसी भी बातें उनके जीवन का जो भाग रहा है उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल के आते हैं, और दूरगामी नेतृत्व उसी को कहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता निकालता है। लेकिन एक बात, आखिर हमें ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और नीतिगत तौर से देखा जाए तो हम आखिर विफल कहाँ हुए कि परीक्षा में और बहालियों में कड़ाई का प्रावधान हम लोगों को करना पड़ा? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इन सभी विषयों के बारे में इंगित करते हैं
तो शायद आप सब लोगों को याद होगा कि जब पहले बहाली की प्रक्रिया क्या होती थी। बहाली की प्रक्रिया होती थी कि विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में जो आपके परीक्षा का जो परिणाम होता था उस पर सीधे सरकारी नौकरी में दाखिला हो जाता था और उस समय तो कोई चुनौती नहीं होता। और परिणाम हुआ कि वर्षों से, और मैं नहीं कहना चाहता हूं कि देश में कई सरकारें रही हैं और मूलतः कांग्रेस की सरकार बड़े लंबे अवधि तक रहा है, तो पिछले 60 वर्षों में अब परीक्षा के परिणामों से नौकरी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार इस प्रकार से उसमें प्रवेश कर लिया। और स्कूली शिक्षा, भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, उसके गिरावट ऐसी थी कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, सब मार्क्स जिस प्रकार से उन सब स्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में मार्क्स लेने की होड़ हुई और जिस प्रकार से उसकी व्यवस्था टूट गई कि सभी राज्यों को और देश की सरकार को अलग अलग परीक्षा करने के लिए मजबूरी पैदा हुई। पहले तो कभी नहीं होता था कि परीक्षा हो नौकरी के लिए, लेकिन अब उसकी परंपरा शुरू हुई। और आज भी हम लोग देखते हैं तो पिछले 60-70 वर्षों हम देख रहे हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आज तक इस प्रकार की कभी घटना नहीं। तो क्या ऐसा होता है कि एक परीक्षा, देश की परीक्षा जहां सारे यूपीएससी से आईएएस और ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के लोग आते हैं, वहां ये घटना नहीं घटती है? ऐसा क्या है कि वही इस भारत के लोग जो इस बात को संचालित करते हैं वहां ये घटना नहीं होती है और बाकी राज्यों में होती है? तो इन सब चर्चाओं के बीच में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्लेषण कराया ही होगा, और ये एक ऐसा विषय है जो मैं किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन पिछले 5 वर्षों का विश्लेषण किया जाए, 15 राज्यों का विश्लेषण किया, जिसमें 1.5 करोड़ लोग जो 41 परीक्षाओं में धांधली हुई या बहाली में धांधली हुई, झारखंड के हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1.5 करोड़ लोग इस देश में, 1.5 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए, क्योंकि 15 राज्यों में लगभग 41 स्थानों पर इस प्रकार का अवैध या गलत बहाली की प्रक्रिया हुई या हो गई। उसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, पुलिस की बहाली थी, फॉरेस्टर की बहाली थी, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट थी। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि किसी राज्य में कम हुआ या राज्य हुआ उनमें ज्यादा हुआ, लेकिन कुछ राज्य का उल्लेख करना जरूरी है पिछले 5 वर्षों में जो ये प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के भीतर 7 इम्तिहान हुए, 40,000 पोस्ट थे और 38 लाख अभ्यर्थी उसमें दाखिल होने के लिए गए। उसके बंगाल के शिक्षा मंत्री जेल में, जैसे अहलुवालिया साहब बता रहे हैं, 38 लाख एस्पिरेंट थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 4,000 पोस्टों की वैकेंसी थी, 1,64,000 लोगों ने उसमें अपीयरेंस दिया, कैंडिडेट्स थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। तेलंगाना में 5 इम्तिहान हुए जिसमें 3,770 पद थे, 7 लाख अभ्यर्थी उसके लिए अपीयर हुए, उसे कैंसिल करना पड़ा। बिहार में 3 परीक्षा कैंसिल करना पड़ा जिसमें 24,000 विद्यार्थी, 24,000 पोस्ट थे और 23 लाख। वैसे मैडम आप भी बिहार से आती है, हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ तो ना फैक्ट्री है, ना पिछले 30-40 साल में जो परिस्थिति रहा, तो हमारे यहाँ बच्चे रोजगार को ही फैक्ट्री मानते हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है कि मतलब हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो चलो पढ़ाई करके सरकारी नौकरी कर ले, वही रोजगार है। तो इसीलिए पूरे बिहारी पूरा भारत चलाता है, बिहारी पीछे नहीं, बिहारी पूरा भारत चलाता। अब क्या करे बेचारा, न फैक्ट्री लगा, लेकिन अब हम लोग सुधारेंगे। अब हम लोग की नई सरकार फिर बनी है, फिर गति से लगाएंगे। लेकिन बिहारियों के साथ तो संकट है, झारखंड के साथ भी वही संकट है। आप हमसे अलग होकर चले गए, 7 विधायक थे हम लोग कभी। तो इन सभी राज्यों में जब रोजगार नहीं, तो सरकारी रोजगार ही मेरे लिए इंडस्ट्री है, क्योंकि वहीं से हम अपने नौकरी पाएंगे, चाहे आईएएस का नौकरी पाए, चाहे बीपीएससी का पाए, हम नौकरी लेंगे। जब नौकरी मिल जाएगा तो हम अपने अच्छा घर मिलेगा, सरकार का घर मिलेगा, हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चों को विदेश बढ़ेंगे, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो उद्योग लगा के लोग पूंजी कमाते हैं, हम बिहार के लोग नौकरी लेके हम अपना जीवन स्तर को ऊपर करते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है। बिहार के साथ कोई हम लोग अलग है, लेकिन 4 करोड़ लोग बेचारे बिहार के छोड़ के चले गए, उसकी भी लड़ाई लड़नी है। लेकिन महोदय, किस तरह से अब हर तरह के चीजें होती है। अब परीक्षा में, अभी कहीं एक परीक्षा हो रहा था, तो उस परीक्षा में, और बिहार कहीं परीक्षा था बीपीएससी का, अब
अब अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मुझे अपने राज्य को ही कोट करना पड़ता है, क्योंकि बिहार सब चीज में आगे है और बिहार हर चीज में आगे है, तो उसमें कई बार इस सब चीजों में भी हम लोग आगे पहुंच जाते हैं। तो ऐप पर तुरंत क्वेश्चन पेपर लीक कर गया, व्हाट्सएप पर उठा के देखा तो सब पेपर, और उन बच्चों को जिनको मोबाइल फोन की अनुमति दी गई थी उनको अलग कमरे में बैठाया गया था। मामला बिगड़ गया तो पकड़े गए। अब इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? अभी तेलंगाना का पीछे परीक्षा हुआ था, 2020 का एग्जाम हुआ, कैंसिल हो करके फिर से परीक्षा हुआ, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और लगभग 1.5 लाख बच्चे उसके इंतजार में रहे। तो कहने का मतलब है कि उन बच्चों का क्या कसूर है, और जो उसमें ईमानदारी से पढ़ के आते हैं उनका क्या कसूर है कि इस प्रकार की स्थिति। ये तो वो है महोदय, हम तो उनको बता रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई और प्रकाश में आ गया और पकड़े गए। अगर यही व्यवस्था, वही तो मैं सोचता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं और कैसे कैसे कल्पना को लागू करते हैं। अब वही बताइए, ये तो वो लोग पकड़े गए हैं और जो पता लगा है। अगर ऐसे हालात बने हुए होंगे तो देश में कितनी ऐसी बहालियां हो गई होंगी जिसका आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि आखिर ये इस कुर्सी पर कैसे बैठ गया। और कई बार दिखता है, कई बार हम लोग को दिखता है, और उसमें हम राजनेताओं की भूमिका तो बहुत बहुत अजीब है महोदय। अब मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं विधायक भी नहीं बना था तब। 1987 में मैं बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में गया। मेरी इंटरव्यू हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैं इकोनॉमिक्स में पास भी कर गया। और उस समय का राज्य सरकार एक 1990 में आते आते बिहार में, जो बाद में माननीय मुख्यमंत्री जेल भी चले गए, वो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनका एक यूनिवर्सिटी पर कब्जा था, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पर कब्जा था। देखिए शुरुआत कैसे होता है, नेताओं की भागीदारी से किस प्रकार से इन परंपराओं को हम लोग तोड़ते हैं। मैं उसी विषय साहब, मेरिट में मैं सबसे आगे था, और जब वो लिस्ट रखा गया उस समय के राजनेताओं के सामने में कि राजीव प्रताप रूडी जो अभी एमएलए है, इस बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में इसका लेक्चरर का अपॉइंटमेंट हो गया, तो पूरा का पूरा वो फाड़ करके नीचे फेंक दिया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सच्चाई है। जब मुझे पता चला तो मैं पटना हाईकोर्ट में गया, मैंने अपने इंटरव्यू के कागज निकाले। मैं बता रहा हूं करप्शन कहां से आता, आपको क्यों परेशानी हो रही है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदया, हाईकोर्ट ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की बहाली 100% करेक्ट है और मैं बहाल हो गया। ये उसी व्यक्ति का। और मैं एक और चीज पूछता हूं, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे तो दूरगामी है, लेकिन ये सब कानून अगर थोड़ा पहले आ गया होता, आप जनरल साहब मेरी बात सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी थोड़ी सी इस बात की तकलीफ है, थोड़ा पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। 20-25 साल पहले बने होते तो कम से कम गलत काम करने वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं, उनको भी समझ में आ गया होता कि कानून इस देश का ऐसा बना हुआ है कि हम गलत करेंगे तो जेल चले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब रोज हम सुनते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री, फलाने मुख्यमंत्री जेल चले गए, और कुछ लोग जेल जाने से परहेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नोटिस ही नहीं लेंगे। ये सब परिस्थितियां इसलिए आती है महोदय कि 2004 से लेकर 2009, अब आप देखिए इस देश में क्या होता है, और आप उससे प्रभावित है, आप उस कुर्सी पर बैठे प्रभावित है। 2004 से लेकर 2009 तक एक व्यक्ति भारत का रेलवे मिनिस्टर बन गया जो उस राज्य का मुख्यमंत्री था। मैं चुनाव हार गया महोदय। 2004 से लेकर 2009 तक पूरे भारतवर्ष में, जिसमें महाराष्ट्र में भी था जोन में, बंगाल के भी जोन में, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, पूरे बिहार के लोगों को सभी जोनल मैनेजर्स, भारतवर्ष के रेलवे के जोनल मैनेजर्स उस समय के जो इसमें बैठते हैं, उन्होंने पूरे भारत में एक आदमी के दस्तखत पर, उसका उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बीमार थे फिर जेल चले गए, अच्छे है, मेरा संबंध कोई खराब नहीं है उनसे, पूरे भारत में ग्रुप डी का कागज का लिस्ट बना बना करके बहाली कर दिया गया। अब मत पूछिए, सबको आप ही जेल भेजते हैं आजकल। और वो पूरा का पूरा, महोदय मैडम आपको याद है, और आज क्या है, जितने लोगों की बहाली हुई, किसी से जमीन लिया गया, किसी से मकान लिया गया, किसी से घर बनवाया गया, और आज भी वो पिछले 10 साल से जेल में थे, छूट के आए हैं और उनका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो गया।
आज भी पेशी होती है उसी बहाली को लेकर के, आज भी पेशी होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर होते, शॉर्ट कर लीजिए, वो दर्द हम आप ही का बात बता रहे हैं मैडम, जी जी आप मालूम ही का बात बता रहे हैं, आप ही के राज्य का। समय के अनुसार बिल पास करना। जी जी मैडम आप भी प्रताड़ित, आपके भी बच्चे, और उससे बुरा क्या होता है पॉलिटिकल लोगों के, जब इस प्रकार की बहालियां होती हैं तो लोग हम लोग के पास आते हैं। अब महोदय ऐसा होता है कि लोग अभी परीक्षा का अभी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि हमें परीक्षा लेना है, और परीक्षा के एप्लीकेशन को लाके एमपी साहब को देते हैं मेरी बहाली करा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम लोगों ने ऐसी परंपरा बना के दिखाई है कि परीक्षा होने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर एमएलए एमपी को देते कि भाई बहाली करा दो। जी 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 जो बोल रहे हैं आप सुन ही नहीं रही मैडम। जी जी बहुत दो का बिल और पास अब हम करना तो इस सिद्धांत अभी तो आप 5 मिनट, आप तो मेरी रात, अब तो आप हम लोग सब साथ चुनाव में जा रहे हैं मैडम, इतना जल्दी जल्दी कीजिएगा, अब तो खत्म हो गया। 2 बिल और आने वाला है ना 2 अब पूरा हम अच्छा, हम आप जो आपका बात हम कभी टाले हैं मैम, बिहार के हित में हम कभी आपका बात टाले हैं? मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं सब सच्चाई है, अब सुन लीजिए, लेकिन समय का थोड़ा सा पता नहीं। अब मैम मेरा घड़ी तो ठीक काम कर रहा है अभी, नहीं हमारा तो 5 मिनट तो होवे किया है। 15 मिनट। अच्छा, हमको चिंता ये है मैडम, देखिए ये जो प्रस्ताव आया है, जो बिल आया है, इसका समर्थन हम लोग पूरे भारत, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सदन का। और आज कितना अच्छा बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं, कल इन लोग कहता तो कितना अच्छा लगे। हर काम देश की सरकार इतना अच्छा ही कर रही है, लेकिन समझदारी से कभी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और इस बड़े परिवर्तन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस सदन को इस कानून को ला करके आने वाले दिनों में जो ईमानदार परीक्षार्थी है, जो ईमानदार अभ्यर्थी है, उसको न्याय मिलेगा, उसके मेरिट को रिकॉग्नाइज करेगा, और यही हमारा लक्ष्य है देश के माननीय प्रधानमंत्री का। बहुत कुमार जी Vanakkam, Madam Chairperson. Thank you. Madam, Tamil Nadu has been one of the great indices in education, and this has been brought about by the education policy, having a primary school for every 1 kilometer, a middle school for every 3 kilometer, a high school for every 5 kilometer, and a higher secondary school for every 7 kilometer. And by this, Tamil Nadu has attained the gross enrollment ratio of 52%. That is what the India gross enrollment ratio is to reach by 2030. Tamil Nadu has reached now itself. Because of all the policies that have been brought by the Dravidian principles and ideologies, which have been opened the education to the underprivileged. That is, during the Justice Party in the year 1920, it was the then government that brought the mid-noon scheme for Chennai Corporation School. And after that, it was stopped due to no funding. And then later on, it was done by the great leader, Penthalivar, the great leader Kamraj. And then followed, we have many schemes which have brought school students for education. And those are having given free cycles, bus passes to students, and so on. The flagship program that we would like to mention, which has been under the able leadership of MK Stalin, is the breakfast scheme, which is the first of its kind in India. And after that, another scheme is giving 1,000 rupees for girl students who study from government schools from 6th to 12th. You give them 1,000 rupees for their entire college, irrespective of whether they study in a government or a private college, irrespective of their courses. This is going to bring the gross enrollment ratio of Tamil Nadu to 75%. So what has happened now is that we want, through you, madam, we request the minister to bring the education list back to the state list instead of the concurrent list. Because people sitting in Delhi cannot decide of the linguistic language that we want in Tamil Nadu or what they want in Northeast. Madam, in developed countries, the state or the province, even if they have one language, a majority speaking language, still the education policy is divided, is decisively taken up by that province or that state, and it is not done by the entire country. So it is high time that each language and cultural diversity that we have conducted, that what we want by ourselves. Madam, it was our great visionary leader, the late Chief Minister Dr. Karunanidhi, who had abolished the entrance exams. And due to this abolition of entrance exams, all the students from rural were able to get into medical colleges, engineering colleges. But with the advent of NEET exam, what has happened is that only the affluent, that is, even if you get a single percentile in your 12th,
examinations, समाप्त कीजिए। you still get with जी, a pass. ये हो If गया, you, समाप्त madam, I'm कीजिए। just finishing in 1 minute, madam. With 20 lakh rupees, if you are rich enough, you can go to a private medical college. So this is what we are against. And madam, regarding the entrance exams, for the students who go for the exams, they are thoroughly searched. They are physically body frisked. Madam, I'm just finishing. They are body frisked. Their dupattas are removed. Their hair clips are removed. Their earrings are removed. Even their ornaments are removed. They shouldn't be treated as terrorists. They should be treated as students who are just going to go into colleges, and they should be treated with dignity and with humanity. With this, I thank you for giving me this opportunity. அவை தலைவருக்கு வணக்கம். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேருவதற்கான பொதுத் தேர்வுகளில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை தடுப்பதற்கான இந்த சட்ட மசோதாவை நாடாளுமன்ற குழுவின் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். இத்தகைய பொதுத் தேர்வுகள் தேவைதானா, இதனை மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். பட்ட வகுப்புகளை முடித்து மாணவர்கள் வேலைவாய்ப்பை தேடுகிற போதும் அல்லது உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேருகிற போதும் இப்படிப்பட்ட போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்பது அவர்களுக்கு கடுமையான மன உளைச்சலை, மன அழுத்தத்தை தருவதாக உள்ளது. முதல் தலைமுறையை சார்ந்த கிராமப்புறத்து மாணவர்கள் பெற்றோர் கல்வி வாசனையே அறியாதவர்களாக இருந்து முதலாக பள்ளியிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் அடியெடுத்து வைக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பட்ட வகுப்பிலே தேர்ச்சி பெறுவதே ஒரு சாதனையாக கருதுகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் அரசு துறைகளில், பொதுத்துறைகளில் வேலைவாய்ப்பை பெறுவதற்கு மீண்டும் மீண்டும் தேர்வுகளை எழுத வேண்டும் என்கிற நிலைக்கு தள்ளப்படுகிற போது அவர்களுக்கான வாய்ப்பு திட்டமிட்டு பறிக்கப்படுவதாகவே உள்ளது. அவர்களுக்கான இந்த வடிகட்டும் முறை என்பது அவர்களை உயர் பதவிகளில் அல்லது வேலை வாய்ப்புகளில் அமரவிடாமல் தடுப்பதற்கான ஒரு புதிய உத்தியாகவே இதை கருத நேரிடுகிறது. என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், நுழைவுத் தேர்வு, எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட், தகுதி தேர்வு, பிறகு ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன், போட்டித் தேர்வு, இப்படி அடுக்கடுக்கான அடுத்தடுத்து பல்வேறு தேர்வுகளை அவர்கள் காண வேண்டியிருக்கிறது. ஒருவன் கல்வி தகுதியை பெறுவதற்கும் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கும் பெரிய இடைவெளி இருப்பதாகவே கருதுகிறோம். எனவே இதனை மேலும் இலகுவாக்க வேண்டும். பட்ட வகுப்பிலே தேர்ச்சி பெறக்கூடியவர்களை உரிய துறைகளில் பணிகளில் அமர்த்துவதற்கு அந்தந்த பல்கலைக்கழகங்களிலேயே அவர்களை தகுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் போன்ற தேர்வுகள் அல்லது இது போன்ற போட்டித் தேர்வுகள், ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட், பேங்கிங் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட், இவற்றுக்கெல்லாம் தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்களை நாட வேண்டியிருக்கிறது. பிரைவேட் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இவையெல்லாம் இன்றைக்கு வணிகமயமாகி இருக்கின்றன. இந்த தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்களில் லட்சக்கணக்கிலே பணம் செலுத்தி, கட்டணம் செலுத்தி படித்தால் மட்டும்தான் அவர்களால் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற முடியும், தேர்ச்சி பெற முடியும் என்கிற நிலை இருக்கிறது. எனவே பொதுவில் இப்படிப்பட்ட இந்த போட்டித் தேர்வுகளை முற்றாக கைவிட வேண்டும் என்பதுதான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் வேண்டுகோள். கடந்த கொரோனா வந்தபோது ஐஏஎஸ் எழுதிய மாணவர்கள் அதற்கான தயாரிப்பை செய்ய முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டு விட்டார்கள். ஆகவே அவர்கள் மறுபடியும் தங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து தொடர்ந்து முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தர வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற குழுவுக்கு ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டு முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। हालांकि इस बिल का समर्थन करती हूं और रद्द की गई परीक्षाओं से पीड़ित प्रत्येक अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति रखती हूं, लेकिन आज मैं इस विधेयक के कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान लाने के लिए खड़ी हूं।
विधेयक की आवश्यकता राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक के बाद भर्ती परीक्षाओं, हरियाणा के में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी, गुजरात और बिहार में सिपाहियों की भर्ती और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ है, जिसके चलते जूनियर क्लर्कों के लिए परीक्षा भर्ती सहित कई प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाओं को रद्द करने की पृष्ठभूमि पैदा हुई है। कई समाचार पत्रों के रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2023 तक पेपर लीक से 1.4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक से 70 से अधिक मामलों ने हजारों इच्छुक उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद किया है और साथ में उनके आर्थिक शोषण भी किया है, क्योंकि बार बार परीक्षा लीक होने के लिए और बार बार परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जो गरीब अभ्यर्थी हैं उनके पास धन उतना नहीं होता, वो लोन लेकर किसी से उधार लेकर परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। तो मैं सरकार से ये मांग भी करती हूँ कि जब परीक्षा इस तरह से लीक हो जाए या पेपर आउट हो जाए या किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो जाए तो उन अभ्यर्थियों का पैसा भी वापस किया जाए। बिल पर गौर करें तो धारा 3 सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन समझे जाने वाले कार्यों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ तक शामिल है। हालांकि मैं इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा करती हूं, लेकिन यह पहचानना भी आवश्यक है कि इन कदाचारियों को मूल कारण बहुत बड़ी प्रणालीगत विफलता है। हाल के वर्षों में पेपर लीक, सामूहिक नकल या प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़, किसी भी रिपोर्ट के बिना सार्वजनिक परीक्षा का सफल संचालन आदर्श दुर्लभ हो गया है। इसके अतिरिक्त हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां परीक्षाओं में सफल होने का दबाव बहुत अधिक है, जो अक्सर देश में प्रचलित निजी क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार के गंभीर परिणामों से प्रेरित होता है। यह चिंताजनक प्रवृत्ति हमारे शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत विफलताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है, जिसे विधेयक पर्याप्त रूप से संबोधन करने में विफल है। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार की घटनाएं पर बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रियाओं में के हानिकारक प्रभावों को उजागर करती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करने के बावजूद कि कदाचार के अलग अलग मामलों के कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाए, कई राज्यों ऐसे कठोर उपायों का सहारा ले रहे हैं। परीक्षाओं को अंधाधुंध रद्द करने से न केवल निर्दोष उम्मीदवारों को गलत तरीके से दंडित किया जाता है, बल्कि इच्छुक उम्मीदवारों की पहले से ही अनिश्चित स्थिति भी बढ़ जाती है। एक उम्मीदवार की दुर्दशा पर विचार करें तो किसी परीक्षा को मनमाने ढंग से रद्द करने या देरी के कारण पात्रता कीजिए करिए। मैम एक मिनट में निर्धारित पात्र के निर्धारित आयु सीमा को पार कर जाता है। कई उम्मीदवारों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होना बेहतर भविष्य हासिल करने का उनका आखिरी मौका है। नकल और कदाचार के कारण बेरोजगारी भी आजकल बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि नौकरियां मिशन मोड में दी जा रही हैं। मैं इसका समर्थन करती हूं, लेकिन जो नौकरियां मिली हैं वो सीमित समय के लिए मिली है या तो आउटसोर्सिंग से मिली है, जबकि राज्यों में और केंद्रों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि एक स्पेशल अभियान चलाकर इन खाली पड़े हुए पदों को भरने की कोशिश की जाए, ताकि जो बेरोजगारी है उसे कम किया जा सके और इस परीक्षा में जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं उस पर दंड प्रणाली और सख्त की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री संजय सेठ जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपका जोहार। प्रतियोगिता परीक्षाओं की निष्पक्ष और सदाचार मुक्त संचालन के लिए पेश किए इस विधेयक के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। पेपर लीक, प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए यह विधेयक हम कह सकते हैं कि देश के युवा मेहनतकश छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए और ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जहां छात्रों का मनोबल टूटे नहीं, युवाओं का मनोबल टूटे नहीं, और कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अंग्रेज के जमानों के 1500 कानून ध्वस्त कर दिए, ऐसे कानून अनुपयोगी थे, ध्वस्त कर दिए, ऐसे कदम उठाए रहे हैं जो देश हित में देश की आवश्यकता है। अभी मैं तो कह सकता हूं कि झारखंड के विद्यार्थियों का सौभाग्य है
अभी 2 दिन पहले मैंने इसी सदन में जेएससी पेपर लीक का मामला इस सदन में रखा था कि कैसे झारखंड के अंदर पेपर लीक हुआ और सचिवालय सहायक परीक्षा जिसमें 750 केंद्र थे, छात्र बस में ट्रेन में चढ़कर परीक्षा देने गए ठंड के मौसम में, और जब परीक्षा दे रहे थे तो उनको पता चला तो पेपर लीक हो गया है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भाग्य कि जब न्याय मांगने गए तो लाठीचार्ज हुआ, उल्टे कल्प्रिट को नहीं पकड़ा गया, छात्रों पे गंभीर धाराएं लगाई गई, छात्रों पर गंभीर धाराएं लगाकर एसआईटी का गठन किया कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। ये कहां का न्याय है? और यही इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के हित के लिए इतना बड़ा सुधारीकरण का कदम उठाया है। और ये जो विद्यार्थी जिन्होंने झारखंड सरकार की परीक्षा लिखने के लिए आवेदन दिया था, इस उम्मीद से कि परीक्षा होगी, उन्हें रोजगार मिलेगा, उनके परिवार का भविष्य सुधरेगा, इन्होंने परीक्षाएं लिखे तो उन्हें पता चला कि परीक्षा का जो ये पेपर लीक हो गया। अब उनके दिल पे क्या बीतती होगी, उनके परिवार पे क्या बीतती होगी। हम ये कह सकते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण कदम झारखंड में ये कदम उठा। और मैं कह सकता हूं कल कांग्रेस पार्टी के एक नेता झारखंड गए थे, उन्होंने फोटो सेशन भी किया, फोटो भी खिंचवाई, लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए छात्रों पे जो लाठी चार्ज हुआ, छात्रों के पे जो केस हुआ, उसमें एक शब्द भी नहीं बोला। फोटो सेशन तो कराओ, लेकिन छात्रों के हित के लिए तो बात उठाते, बात करते। मेरा महोदय से आग्रह है कि अविलंब सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो कल्प्रिट है, बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, उसको जेल के पीछे डालना चाहिए। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, युवाओं को, छात्रों को इतना बड़ा उपहार देने का काम किया है। आपको पुनः अभिनंदन करते हो इस आशा के साथ कि झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय होगा। सीबीआई जांच कराकर ऐसे कल्प्रिट को जेल भेजे। हाँ, माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। क्या अध्यक्ष जी जी। आप दिए हैं समय? आप समय मांगे हैं? तो कहाँ मांगे थे समय? मैंने पहले बोल चुके। ओ, बोल चुके थे। अच्छा, लिस्ट पे नाम। सर बैठा जाए जी, 2 मिनट। मैं 2 मिनट एकदम। जी जी। मंत्री जी, I rise to dwell on the legislative document under the nomenclature of the Public Examination Prevention of under Unfair Means Bill 2024. It may be called as anti-cheating bill. May I draw the attention of Honorable Minister that according to the news published in the Indian Express, it has been stated that there have been a very large number of cases of question paper leaks in recruitment exam across the country in recent years. An investigation by the Indian Express found at least 41 instances of paper leaks in 15 states over the last 5 years, in which the process of hiring for government job was disrupted. The leaks touched the lives of 1.4 crore applicants for about 1.04 lakh posts. What shall be the fate of those aspirants who have been caught in this kind of nefarious activities for which they have not committed any fault? Second thing, I would like to suggest that you are talking about through this legislative document transparency. Just yesterday, I have mentioned that according to the Transparency International report, India's ranking on the Corruption Perception Index dropped from 85 in 2022 to 93 in 2023. So that means Corruption Perception Index has been alarmingly increasing. Here in this bill, certainly lofty ideals have been
and sign, but the issue is that you are putting your entire emphasis on punishment. But why not? Preventive measures are being conceived. Only on the basis of coercion, this kind of Nishikant Dubey is interacting with the officials, not sir. Madam, Nishikant Dubey is interacting with the officials in the official box. How can he? No, you cannot. So, the bill has penal provisions for committed offences but lacks preventive measures to reduce such acts. Second issue, आप बोलने दीजिए they are the officials, they are the आप government बोलिए। officials. नहीं आप बोलिए ना अपना। Second thing, Honorable Minister, the transparency regime in the country is currently facing significant challenges. 3 state information commissions are inactive and 6, including the Central Information Commission, have pending vacancies at the leadership level. Additionally, there is a backlog of 3.21 lakh complaints and appeals. How would you be able to deal with this kind of a situation? हो गया समाप्त कीजिए। Third, madam, हो गया? हो गया। Third, in October 2023, a cyber security firm based in United States disclosed that the personal data of 815 million Indian citizens, such as Aadhaar numbers and passport details, was being sold on the dark web. In the past 5 years, leading up to March 2023, there have been a total of 47 incidents of data leaks and 142 data breaches reported as per the Union government. When there is a plethora of such kind of leaks, how would you be able to plug this kind of serious loopholes? Not only that, only 38% of households in the country are digitally literate. 70% of India's population struggled with limited access to digital services. Among the poorest 20% of households, only 2.7% own a computer and 8.9% have internet access. Again, I am also trying to highlight the issue that the entire emphasis of this legislative document is to centralize the entire authority at your disposal. So that is why the bill grants significant authority to union government, including the power to formulate rules and regulation. Additionally, it confers the ability to transfer investigation to central agencies, thus consolidating considerable control of investigation in the hands of the union government. And if the centralization of authority is at the hand of the government like you, then it is easily assumed that all your opposition voices will further be throttled by dint of this kind of legislation. Thank you. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है। ऐसी अपेक्षा ना थी कि इस विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा होगी और इतने सारे माननीय हमारे सदस्य इसमें बोलने की इच्छा प्रकट करेंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि ये विषय सबके हृदय के नजदीक है और कुल मिलाकर के सिद्धांतिक तौर पर किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। I will like to officially acknowledge Shri Suresh from Congress, Dr. Satpal Singh, BJP, Dr. D.M. Kartir Anand from DMK, Chinta Anuradha ji, YSR, Rahul Ramesh Shivale ji, Shiv Sena, Achyutanand Samant ji, BJD, Maluk Nagar Sahab from BSP, Maharaj Sumedanand Saraswati ji, Bharatiya Janata Party, Imtiaz Sahab, Dr. DNV Santi Kumar, Dr. T.T. Chidambaram, Mrs. Sangeeta Azad, Shri Sanjay Seth और अभी अधीर रंजन जी। बोले
रूडी जी हमारे गुरु भी हैं और सदा हमें गाइड भी करते रहे, इसलिए इनका नाम मेरी जुबान से लेना छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती थी। दादा का नाम ले लीजिए, दादा का नाम ले लीजिए। जैसे एमके रामचंद्र हैव स्पोकन नहीं है, ये फिर से आ रहा है। No, this is also a healthy sign, Dada, that everybody wants his name to be included and associated with this legislation. So it gives me tremendous amount of encouragement. Thank you, sir. Thank you. Now the point, sir, is, as I said in the morning, I hope we'll carry forward this legislation in the same spirit. This is above politics, and I think this is a concern which deals with the daughters and sons of this country, and which all of us share. अब कुछ एक शंकाएं हैं, क्योंकि अभी हमने इस बिल को शायद उतना विस्तृत तौर पर पढ़ने का अवसर भी नहीं रहा और चर्चा भी नहीं रही। सबसे पहले तो जो बात माननीय सुरेश जी ने उठाई थी, उसके बाद फिर भी कुछ एक हमारे मित्रों ने उठाई। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि the student or the candidate does not fall in the purview of this legislation. कहीं ऐसा संदेश ना जाए कि किसी उम्मीदवार को, चाहे वो जॉब एस्पिरेंट है, चाहे वो किसी उच्च संस्थान में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट है या उम्मीदवार है, उसको किसी तरह से हैरेसमेंट में डाला जाएगा, तंग किया जाएगा। ये लेजिस्लेशन या कानून उन लोगों के विरुद्ध लाने का प्रयास हो रहा है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं या इसमें किसी तरह का अपराध करते हैं। दूसरा, ये कहा गया कि फेडरल, आई थिंक अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी वी हैव ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सो वी हैव गॉन वन स्टेप बियॉन्ड, एंड इट विल नॉट बी राइट टू से दैट देयर इज एनी अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज दिस एंटायर सिस्टम। जब हम सबका एक ही कंसर्न है तो सेंट्रलाइज की क्या बात है? मैंने सुबह भी कहा था, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे या आपके बच्चे या आपके बच्चे या आपके बच्चे या आपके बच्चे उस स्थिति से गुजरे जैसे वो बिटिया गुजरी, जो लिख के छोड़ गई कि मम्मा पापा आई एम दी वर्स्ट डॉटर इन दिस वर्ल्ड। तो फिर कहाँ आया सेंट्रलाइज? वो कहते हैं कि खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जहां दर्द से हम जुड़ रहे हैं वहां जुदाई की कोई गुंजाइश नहीं, राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार बात कही गई है और वो एक सकारात्मक सुझाव है कि अगर कोई परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो फिर उसको जल्द अज जल्द करने का प्रयास किया जाए। आई थिंक दिस इज अ सजेशन विच इज वेल टेकन। और इनका कहना है कि बच्चों का साल जाया जाता है। अब उसमें होता क्या है कि अलग अलग परीक्षाएं जब रद्द होती हैं तो अलग अलग कारणों से, कहीं सीबीआई की इंक्वायरी है, कहीं किसी और तरह का एजेंसी या संस्था और इसकी जांच कर रही है, तो इसलिए चाहते हुए भी कोई समयबद्ध सीमा रेखा बनाना प्रत्येक परीक्षा की स्थिति में संभव नहीं रहता। लेकिन हाँ, प्रयास हमारा भी यही रहेगा और सबका रहेगा, और जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज है उनका भी रहता है। और उसके दायरे में वो सारे अदारे आ जाएंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, चाहे संस्थाएं हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर हैं। सतपाल जी ने ठीक कहा कि लाखों की संख्या में अब ये परीक्षा में हमारे उम्मीदवार अपीयर होते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 50, 60, 70 लाख। और इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद अभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे उस तरह से विकसित हो रही हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात विच आई विल सीक द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर टू क्लैरिफाई, डॉक्टर डीएम कार्टिर आनंद साहब ने बड़ा एक सरकार पर आरोप लगाया कि ये भाषा के कारण कहीं भेदभाव हो रहा है। Now I said in the beginning, I don't want to give even the slightest political tinge to this debate, but on the basis of facts, may I make a small submission?
that this is for the first time, this government, NDA government under Prime Minister Modi, which has started conducting staff selection examination in 13 regional languages, including Tamil. This did not happen during the UPA rule, of which DMK was the partner. So may I humbly remind him, what they had left undone has been accomplished by this government. If they could not do it at that time, whatever may be their reasons, we have done it. Similarly, as far as the UPSC is concerned, we have again 13 scheduled languages conducting this exam. We hope to gradually include all the 22. The staff selection examination is being conducted in all the regional languages, including Tamil and also the other South Indian languages. और मैंने सुबह कहा था कि मेरा सौभाग्य कि इस तमिल संस्कृति के प्रतीक सोलंग के उपस्थिति में इनको साक्षी जान करके हम ये युवा शक्ति को समर्पित ये विधेयक ला रहे हैं. So with all the due respect to all the cultures, all the regions of this country, we have introduced 13 regional languages, this government only, for all the different kinds of exams, including MTS, non-technical, constable in paramilitary forces, and combined higher secondary level. Higher secondary के बाद जिन पदों के लिए उम्मीदवार क्वालिफाइड होता है एलिजिबिलिटी, उस तक भी हमने रीजनल लैंग्वेजेस में तान करने शुरू कर दिए. उसके उपरांत उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु में वहाँ की सरकार टीचिंग मटेरियल और प्रेपरेटरी मटेरियल उपलब्ध करवा रही है. ऐसा नहीं है, ये व्यवस्थाएं केंद्र सरकार में भी है और हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि राज्य सरकारें भी उसका लाभ लें. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उदाहरण के तौर पर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सेट अप अर्ली 1950s, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी शिलान्यास किया था, प्रथम राष्ट्रपति. वो उसका यही दायित्व है, यही मैंडेट है और समय समय पर प्रदेशों के अधिकारियों और वहां के दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए इस तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं. अब इसके अतिरिक्त मालूक नागर साहब ने एक बात कही कि बॉर्डर विलेजेस की विशेष चिंता की जानी चाहिए. शायद उनके ध्यान में होगा कि मोदी जी ने ही इन सीमावर्ती गांव के नाम को आखिरी गांव से बदल करके पहला गांव किया. यानी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान, जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी की, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे वो शौचालय का है, वो सुविधा के साथ साथ सम्मान देती है, विच रेजेस द एस्टीम ऑफ द कॉमन इंडियन. और उन्होंने कहा कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी है, उनका भी समय समय पर किस प्रकार से जायजा लिया जाता है. हमारे पास पहले ही उसके लिए व्यवस्था मौजूद है और अब उसको भी तरह तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सुदृढ़ करने का काम किया गया है. इसी प्रकार सारंगी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आइडियली दिस सिचुएशन शुड नॉट हैव अरिजन. हमारे संस्कार इतने मजबूत हों, हमारी विरासत से लिए गए हमारे मूल्य इतने मजबूत हों, हमारी इंटेग्रिटी इतनी मजबूत हो, तो शायद इस तरह के विधेयक की आवश्यकता नहीं हो, शायद फिर इस तरह के कानून की जरूरत भी ना हो. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भी ठीक कहा कि जब तक वो स्थिति नहीं आती, if we actually rise to that is the ideal level which Mahatma Gandhi once said. What is the meaning of non-violence? Non-violence is not the virtue of the meek or the weak. मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं, मैं दुर्बल हूं, डरता हूं मुकाबला करने से और कहता हूं कि साहब मैं हिंसा का पुजारी हूं, मेरे ऊपर हमला ना करिए, तो वो मेरी कायरता है, वो हिंसा नहीं. ये गांधी जी ने भी कहा, ये गौतम बुद्ध ने भी. बट टिल वी राइज टू दैट लेवल, और जिस दिन हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, फिर ना हमें एंटी करप्शन की आवश्यकता होगी, ना विजिलेंस एजेंसी की बात होगी. लेकिन तब तक, क्योंकि ये संसार है, इसे कुरीतियों से बचाना भी हमारा दायित्व है. और जैसे वो इकबाल का एक शेर है कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल,
लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दो। आइडियली हार्ट शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय द ब्रेन, बट डज नॉट हैपन ऑलवेज। और इसलिए इन कुरीतियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। इसी प्रकार कल्याण बैनर्जी का ये की चिंता थी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कैसे हो। दादा, श्योर, आई एग्री विद यू, ऑल ऑफ अस एग्री, implementation is equally important. If we have not been able to accomplish it to the expected levels, to the desired levels, all of us, the entire society is responsible for it. यही सरकार थी, यही विभाग था डीओपीटी का। सन 2018 में मेरे ही माध्यम से यहाँ एक विधेयक लाया गया था। 1988 का एंटी करप्शन कानून हमने संशोधित किया और हमने रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी उसके दायरे में लाया। So the bribe taker alone was not made culpable, the bribe giver also. कहने का तात्पर्य ये कि जितनी भी यहाँ पर रचनाएं हो रही हैं, इन सारे नियमों की, विधायकों की मोदी जी के नेतृत्व में निहायत ही संवेदनशीलता के साथ हो रही हैं। इसी तरह से जस्टिस मासूदी साहब का कहना ठीक है कि जस्टिस प्लेइंग फील्ड इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, and actually we are aiming at that. In the beginning of my opening remarks, I mentioned we brought in the rule to abolish interview. Interview abolish करना इतना आसान नहीं रहता, और सबसे ज्यादा तो दिक्कत राजनीतिज्ञों को आती है। अगर नहीं आती होती तो 65 साल पहले ही खत्म कर दिया जाता, क्योंकि फिर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, चाहे वो आपका कार्यकर्ता, आपका प्रिय। लेकिन ये घोर पाप ना हो। मोदी जी ने ये कहा, ये सिखाया कि जहां जिस चीज की कमी रह गई है उसकी पूर्ति करनी, फिर उसके बाद जनता के विवेक पर छोड़ दी। अब एम के प्रेमचंद जी ने ये कहा कि देयर इज अ मिसइंटरप्रिटेशन इन द प्रोविजो which is not required, that those who are not found guilty among the officials would be spared. I agree with you. आपका कहना था कि वो तो स्वाभाविक है. If he is not guilty, why do you mention it in the bill? I agree with you. Academically you are right. But ये mention इसीलिए किया गया कि कहीं दूर दूर से गलती से भी ये धारणा ना जाए कि ये विधेयक किसी को अनावश्यक परेशान करने के लिए लाया गया है। विद्यार्थी उम्मीदवार को तो कदापि नहीं, कतई नहीं, लेकिन किसी अधिकारी को भी नहीं, यदि वो गुड फेथ में काम कर रहा है। सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि पारदर्शिता भी होनी चाहिए। वो एक दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर इट राइट फ्रॉम द डे द एबॉलिशन ऑफ इंटरव्यू वाज डन, the abolition of attestation was done, and उन्होंने 12वीं फेल उस सिनेमा का उदाहरण भी दिया और उस जमी जमाई व्यवस्था का। इंसिडेंटली यू विल बी amused to know that जब आप क्रेडेंशियल्स देखते हैं 12वीं फेल के पिक्चर के, उसमें एक्नॉलेजमेंट्स में एक नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है। क्योंकि विदु जी हमारे मित्र हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा उनके साथ सहयोग किया था। मैंने कहा ज्यादा उसमें तफसील ना दीजिएगा, आई डोंट नो हाउ इट विल बी टेकन, बट नेवरदलेस इस एन अवार्ड उसी के ऊपर प्रहार करने के लिए इस तरह का विधेयक लाया गया है। एंड इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। जैसे कहते हैं शास्त्रों में संस्कार बदलने में 2 पीढ़ियां लगती है, 3 पीढ़ियां लगती है, तो 3 पीढ़ियों के बाद उसके परिणाम मिलते हैं। बट वी हैव एटलीस्ट मेड अ बिगिनिंग। The rationale of this legislation, as you rightly said, and I think that gives me an opportunity to clarify before all the other friends, कि जब इस तरह क्या हमारे पास क्रिमिनल लॉ भी है तो क्या जरूरत थी, उसका ये है कि this is a specific legislation because in the existing भारतीय न्याय संहिता offenses like this are not specifically mentioned, and therefore we have identified and tried to define the unfair means. In the conduct of examinations,
to the best of, if the magnitude of the crime goes beyond an extent, obviously it will fall in the domain of the Bharatiya Nyaya Sanhita or the इम्तियाज साहब बड़े गुस्से में बोल रहे थे, तो वो कह रहे थे, वो गिनवा रहे थे वो सूबे जहां जहां के नाम नहीं लिए गए, तो कहने लगे वहां पर भी इस तरह का होता है, ऐसा नहीं होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। मुझे थोड़ी देर के लिए मैं चौंक गया कि उनको गुस्सा क्यों आया। वो फिल्म आनंद में आनंद कहता है डॉक्टर भास्कर को कि बाबू मोशाय मैं समझ गया तुम्हें गुस्सा क्यों आया, तुम्हें मुझ पर नहीं अपने आप पर आया। मैंने तो शुरू में ही कहा कि सभी प्रदेशों में हो रहा है, और अधीर रंजन जी ने पढ़ा, सुबह डॉक्टर सत्यपाल ने भी पढ़ा वो समाचार पत्र कि 15 प्रदेशों में इस तरह के, 15 सूबों में इस तरह की घटाई हुई। और अगर आपको याद होगा तो शुरू में आरंभ में इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स जिन प्रदेशों के मैंने नाम गिनवाए, आखिर में एक नाम जम्मू कश्मीर का भी था, जस्ट टू मेक इट evident that this is a menace, this is a problem being confronted by different, हाँ कहीं कहीं जहां व्यवस्थाएं कम है, प्रशासनिक अभाव है, अब राजस्थान में एक के बाद एक घोटाले होते रहे, अब उसका जवाब तो राजनीति की देना होगा, और लोगों ने उसका जवाब दे भी दिया, और सरकार बदलने के बाद वो बंद हो गए। 3 एग्जाम हो गए, तीनों एग्जाम में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान में तो चुनाव का मुद्दा ही ये बना, अब उसमें क्या कहा जाए, जहां जहां प्रशासनिक अभाव रहेगा वहां इस तरह रहेगा। सुप्रिया जी ने एक और बात कही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए और होना अनिवार्य भी है, और बहुत सारे ऐसे घोटाले ये जो हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुए। आजकल एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, दैट इज व्हाई आई डिडंट स्पीक अबाउट इट। लेकिन जब हमारे रूल्स बनते हैं तो हमारे मन में ये भी कल्पना है कि हम एक ऐसी टोली, ऐसी कमेटी गठित करेंगे विशेषज्ञों की, जो समय समय पर इसका सर्वेलेंस भी करे, जो समय समय पर इसको अपडेट भी करे, हमें भी समझाए, जो समय समय पर यूनिफॉर्मिटी भी लाए, क्योंकि जब संख्या बढ़ गई उम्मीदवारों की, वेंडर्स की संख्या की कमी है, उसको भी आने वाले समय बढ़ाना पड़ेगा। जब वो सब लेटिंग करते हैं तो उससे भी कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, उसके लिए हम विशेषज्ञों को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। डायरेक्टर्स और ऑफिशियल फंक्शनरीज का जहां तक प्रश्न है, उसके लिए भी ये रखा गया है कि जहां ये साबित होगा क्योंकि किसी अधिकारी ने मिली भगत करके किसी माफिया की मदद की हो, तो आप मेरे से सहमत होंगे उसको तो बख्शा नहीं जा सकता। और ये कहा गया अधीर रंजन जी ने कि आपने सजा दे दी लेकिन समाधान नहीं दिया। अधीर जी, though I am not a law knowing person, to my primitive or limited knowledge, punishment itself is a deterrent for prevention. This is the first step towards prevention. And then as we move on from this experience, we will collectively apply our minds and go in for further also. But if we don't take even this first step, we will not be preventing anything at all. Baki, no, both. No, that is what I am saying. Punishment of a culprit is also a means of deterring the crime to happen again, which also is a preventive measure. A, B, if you take prevention in the larger scale, preventing the technological lapses happening, or prevention at the level of the means used, I said we will, in the times to come, envisage including experts to offer their inputs for that. But at least let us take this first step. और इसमें जो हमने लेजिस्लेशन पर जो प्रपोज की है, उसमें आपने तो पढ़ ही लिया कि 3 साल से 5 साल अप टू 10 लाख, बट उसमें सर्विस प्रोवाइडर का अलग से जिक्र आया है और सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्टर
क्योंकि बहुत से सदस्यों ने ये चिंता व्यक्त की कि इस तरह से बहुत सी संस्थाएं खुल गई हैं, ये भी एक पेशा बन गया, इम्तिहान करवाना और फिर इम्तिहान में पास करवाने की भी फीस पहले से ले लेनी। So how do we handle that? So we have tried to classify the institution which is found involved in conducting such exams. And in case of public servants, of course, if it is happening by default or in good faith, the person will not be culpable. But in case it is, then of course. And beyond that, we would also go into the domain of Bharatiya Nyaya Samhita. अब इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं बात समाप्त करने से पहले ये कहूंगा कि ये बड़ी संवेदनशील सरकार है और जो भी ये नियम बनाया गया है बड़ी संवेदनशीलता के साथ बनाया गया है, और एक ऐसे समय में जब हम पूरी तरह से युवाओं को अपना सामर्थ्य, अपनी सेवाएं पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता से समर्पित करने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं. एंड वी हैव अ ह्यूज स्टेक in the youth of this country who comprise more than 70% of population below the age of 40. And therefore, we cannot allow the meritorious to be sacrificed at the altar of such organized crimes or such self-centered elements in this society. इसी सरकार ने एक इकोसिस्टम जो बनाया है उसका लाभ भी, सदुपयोग भी तभी हो पाएगा यदि हम युवाओं के लिए इस प्रकार का संरक्षण देंगे. हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, विच गिव्स यू द लिबर्टी ऑफ एंट्री एग्जिट, ताकि आप यू डोंट बिकम प्रिजनर ऑफ योर एस्पिरेशन. क्या आपने डॉक्टर बनने के लिए 12वीं जमात में कर लिया मेडिकल, डॉक्टर नहीं बन पाए, फिर क्या करें? बीएससी करेंगे, वो भी उसी सब्जेक्ट में. फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, वो भी नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? फिर आप एमएससी करेंगे, फिर भी वही सब्जेक्ट. फिर भी कुछ नहीं बने, कहीं अध्यापक प्रोफेसर नहीं बने तो क्या करेंगे? पीएचडी. हियर यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट्स, you can juggle your subjects, you can combine economics with biology. और जैसे जैसे आपका एप्टीट्यूड ग्रो होता है, आपको अपने अंदर एहसास होता है कि नो आई एम मेंट फॉर दिस. बम्बई हर व्यक्ति एक्टर बनने जाता है, हीरो बनने जाता है, बाद में वहां पहुंच के लगता है कि नहीं, हीरो बनना मेरे बस की बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा. इसलिए उस इकोसिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए भी इस तरह का, और इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के उस वर्गों की चिंता की है जिनकी अभी तक किसी सरकार ने की. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कभी किसी ने रेडी वाले की चिंता की? आते जाते दूसरी नजर भी न देखते थे. ज्यादा पुलिस वाला आके ठोकर मार के उसको आगे पीछे कर देता. बिल पे आओ. और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वो लोग जो अपनी जीविका भी कमाते हैं और भारत की संस्कृति सभ्यता को भी जिंदा रखते हैं. चले पास करें. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. और इसीलिए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं दादा, यू डोंट अंडरस्टैंड. डाटा लीक हो रहा भी तो इसी का कारण है. इसी डाटा लीक इज अ मींस ऑफ मैनिपुलेशन, दैट इज अ मैल प्रैक्टिस. जब आप है उस, अरे आप समझे नहीं, दैट इज नॉट इन द परव्यू ऑफ दिस बिल. बिल आपका मैल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन का है. सो डाटा लीकेज as a malpractice in examination is also under the purview of this bill. बिल नहीं है. अच्छा, आप भटक रहे हैं विषय से. अगर मैल प्रैक्टिस में डाटा लीक होता है तो वो भी इसके दायरे में आता है. अब बात समाप्त करने से पहले अध्यक्ष महोदय, मैंने जहां से बात प्रारंभ की थी वहीं से अपनी ओर से, और मुझे विश्वास है इसमें दादा अधीर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, एक अपील करके सभी सदस्यों से, सभी भारतवासियों से कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य को किसी से हाथों में उसको छेड़छाड़ ना होने दे, उनको उस तनाव की परिस्थिति में ना पड़ने दे जो इन आत्महत्याओं में परिवर्तित होते हैं. और मैं अपील करता हूं माता पिता से भी, बच्चों से भी, कि वो इस बदलते हुए नए युग में मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका, अपना योगदान निभाने के लिए अपने आप को समर्थ बनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए.
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन.के. प्रेमचंदन, संशोधन संख्या 1 से 3। Sir, these are amendments to clause 2. My amendment is along with the wrongful gain. Wrongful gain is not defined in the bill. Along with the wrongful gain, I would like to suggest that nepotism and favoritism. If anything is done for the purpose of nepotism or favoritism also will come within the purview of this wrong or this offense. That is my amendment. Kindly accept it. प्रश्न है कि श्री एन.के. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न 1 खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद जी, संशोधन संख्या 4 और 5। Sir, I am moving the amendments. प्रश्न 1 श्री एन.के. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बने। श्री एन.के. प्रेमचंद जी, संशोधन संख्या 6। Sir, I am moving. प्रश्न है कि श्री एन.के. प्रेमचंदन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 से 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 से 7 विधेयक का अंग बने। एन.के. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 7। So the Honorable Minister has already agreed also. Kindly see in the future unnecessary proviso is being provided in the bill. That may be looked into after that with the assurance that I am not moving the amendment. प्रश्न है कि खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। एन.के. प्रेमचंद जी, संख्या 8 और 9। Sir, 8 or 9, I am moving it. प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 और 9 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 10 से 17 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 से 17 विधेयक का अंग बना। एन.के. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 10। Sir, I am moving. प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंदन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 18 और 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 18 और 9 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालोक के पक्ष में, हवालोक के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। Speaker sir, I rise प्रश्न है कि Public विधेयक Examination Prevention of Unfair Means 2024 bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालोक के पक्ष में, हवालोक के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 26 और 26(7) चर्चा में एक साथ लिए जा सकते हैं। ओके। माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान संशोधन अनुसूचित जातियां आदेश 1956 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय श्री मंत्री अर्जुन मुंडा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान जम्मू एंड कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। श्री अमर सिंह जी। धन्यवाद सर। मेरे को इन संशोधनों पर बोलने का मौका मिला है। सर, पहला संशोधन तो सिर्फ एक वर्ड वाल्मीकि ऑलरेडी है, लेकिन उसकी जगह वी वाला वाल्मीकि उसको साइनोनिम करके जोड़ रहे हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो तो ठीक है, कहीं रह गया होगा उसको जोड़ रहे हैं, वो ठीक है। तो उसमें कोई साइनोनिम डालने में कोई इशू नहीं है, उसमें मेरा कोई दूसरा कोई विचार नहीं है। सभापति जी, जो असली मुद्दा है कि जम्मू और कश्मीर में और सारे हिंदुस्तान में जो कमजोर लोग हैं उनकी हालत क्या है। जम्मू कश्मीर में जो पहले रिजर्वेशन थी वो थोड़ी सी है। मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसको भी अमेंडमेंट ले आए, सो दैट वो जितनी उनकी जनसंख्या उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिल जाए। अब अगर अपन क्योंकि आपने 2021 का सेंसस तो कराया नहीं, तो अपने पास वो फिगर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2011 का सेंसस अपने पास फिगर्स अवेलेबल हैं। एससी पॉपुलेशन मुल्क में 16.6% है। मंत्री जी, आपकी ही फिगर्स है 16.6%, लेकिन इन एससी लोगों के पास सिर्फ 2.2% लोगों के पास ही जमीन है, बाकी तो 97.8% लैंड लेस है, मतलब जमीन उनके पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुल्क के सामने। अपन कोई भी चीज देख ले, अगर पॉवर्टी देखे, एनएसएसओ ने 2019 में आपकी सरकार में ही कहा कि इस मुल्क में 21% लोग गरीब रह गए हैं। हालांकि वो गरीबी की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, सब्सिस्टेंस लेवल उसको डेफिनेशन बोलते हैं। पर चलिए, 26 रुपए रूरल एरिया, 32 रुपए अर्बन एरिया पर डे की, तो ये तो हमारी डेफिनेशन है। पर उसको भी देख लीजिए, अगर 21% जनरल अपना मुल्क में गरीबी है, तो ये लोग तो 32% गरीब हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में देख लो, लिटरेसी देख लो, ओवरऑल मोर देन 80% है, ये 70% पे खड़े हैं।
किसी भी चीज में आप देख लो, बैंक लोन में देख लो, सिर्फ 15 से 16% लोगों को लोन मिल रहा, बाकी 85% घूम रहे हैं, किसी को लोन नहीं मिल रहा। और 2018 में आपकी सरकार ने सर्वे कराया, सिर्फ 11% अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, और पीएचडी में तो उससे भी कम है, 9 या 10% है। एमबीबीएस ग्रेजुएट में आपकी सरकार ने ये सब निकाला, 8.3% स्टूडेंट है। ऑल इंडिया सर्विसेज में माननीय मंत्री जी चले गए हैं, इन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया, एससी सिर्फ 7.65% है, 15% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, 7.65%। ये राज्यसभा का एक जवाब है, तो आप देख लीजिए। फिर 15-16 में आपकी सरकार ने एक सर्वे कराया एनएसएसओ से कि माइक्रो स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उसमें देखो कि वीकर सेक्शन कितने लोग हैं। मीडियम में जो है वो 0.01% है, मतलब नाम के बराबर है। स्मॉल में 5.5% है, माइक्रो में जो छोटा सा कोई धंधा दुकान खोल के बैठ गया वो 12.5% आपकी सरकार का सर्वे है। अच्छा, इनकम देख लीजिए, एवरेज इनकम नेशनल की, ये भी आपकी गवर्नमेंट की फिगर्स है कि एवरेज इनकम अब कंट्री में 1,64,000 करीब है पर एनम, और एससी लोगों की 89,000 है, करीब 50% है। अच्छा, एजुकेशन में मंत्री जी, मैं चाहूंगा आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भारत सरकार ने क्यों बंद किया 22-23 में? अब समाप्त किया जाए। मैडम, मैं पहला स्पीकर हूं और मैं ये ऐसे कैसे? 5 मिनट मिला है, 1 मिनट और बोलिए। नहीं मैडम, ये तो प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। है इसको 1 घंटे में एक्सटेंड कर लो मैडम। हाँ हाँ इतना कम टाइट अपन रखेंगे तो कैसे बात करेंगी? हाँ, चलिए, मैं फिर भी 1 मिनट और मिलेगा। मंत्री जी, बजट एलोकेशन पिछले 5 साल का निकाल के देखा, सिर्फ आप 11% कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर है 60 to 70%। दैट मीन्स मतलब जो आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान का कर रहे हैं, तो इनका भला होना कहाँ है? एट्रोसिटीज बढ़ गई हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है? तो मेरा कहना है कि ये अमेंडमेंट तो सही है, लेकिन हमको ओवरऑल ये वीकर सेक्शन जो हैं, इनकी जो सारे पैरामीटर्स में ये इतने नीचे हैं, उसको सरकार को उस पे लिए कुछ स्कीम लेके आने चाहिए। और मंत्री जी, ये सारे जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं उसका अपने जवाब में जवाब दें कि सरकार क्या करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद महोदया जी। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 ऐतिहासिक विधेयकों पर इकट्ठे यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश विधेयक संशोधन विधेयक 2023 और दूसरा संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 को पास करने पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो, एक नहीं अनेक कदम जो है वो उठाए गए हैं, और हर एक कदम जो है वो सराहनीय है। और विशेष तौर पर जब से धारा 370 हटी है, तब से तो जम्मू कश्मीर के बाग ही खुल गए। और मैं बताना चाहता हूं कि आज का ही दिन आप देखिए, तो आज के ही
दिन की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वर्ग, जो हमारा पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्थानीय निकाय एवं पंचायतों में माता बहनों को आरक्षण देने की व्यवस्था जो है वो आज इस सदन ने की है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो दूसरा विधेयक अभी जिस पर चर्चा हो रही है, वाल्मीकि समुदाय के लोगों को ऐसी स्टेटस देने की बात हो रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब दूसरा जो है, तीसरा, अब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने की बात जो है वो हो रही है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और ऐतिहासिक विधेयक है। जम्मू कश्मीर में 70 वर्षों से अराजकता और अन्याय का दौर जो था वो चल रहा था, और ये विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के दौर में चला। लोग असहाय थे, मजबूर थे, लोगों के साथ कई किस्म की यातनाएं दी जा रही थी, गुनाह हो रहे थे, लेकिन लोग सहन करते जा रहे थे, लोगों की पेश कोई नहीं चलती थी। लेकिन महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के वासियों को एक गुलाम बनाकर रखा था, विशेष तौर पर 3 परिवारों ने, जिनकी मैं अभी अभी बात कर रहा था, और उन्होंने लूट खसूट का दौर जो था वो जारी रखा था, अपने परिवार की चिंता और नागरिकों को परेशानियों देने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हमेशा धोखा, साजिश, गुनाह किया है और उन लोगों को गुमराह किया है। और विशेष तौर पर महोदय, जम्मू कश्मीर के लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों से भी वर्षों तक इन पार्टियों ने जो था वो वंचित रखा। मैं बताना चाहता हूं महोदय, वहां के हुक्मरानों ने वो सारे जो हक थे जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनको छीन के रखा और उन तक वो हक नहीं पहुंचाए। जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म और सितम का दौर देखा है, सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, रोशनी की किरण 2014 में नजर आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सेवक के रूप में बागडोर संभाली और लाल किले से यह घोषणा की कि सबका साथ, सबका विकास होगा। तब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रोशनी की किरण जो है वो नजर आई, और उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो है वो इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास हो गया कि अब होगा इंसाफ। सबसे पहले गुजर बकरवाल गद्दी सीपी, जो अपने हकों को लेकर बरसों से चिल्ला रहे थे, उनको इंसाफ दिया गया, उनको जमीनों का मालिकाना हक दिया गया, और गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो दी गई। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, 50 सालों की मांग ओबीसी के वर्ग के साथ जो इंसाफ है वो भी अब जाकर हुआ है। लेकिन इसके साथ ही वाल्मीकि समाज की बात करूं, पीओजेके के लोग थे, बरसों से दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उनको भी इंसाफ देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी जो बरसों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन उनको नागरिकता ही नहीं दी गई थी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने धोखा किया था उनके साथ, सिर्फ लोल लुभावने नारे देकर वोटों की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति। लेकिन अब जाकर उनके साथ भी इंसाफ हुआ है, उनको भी नागरिकता जो है वो मिली है, वो सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जो देश के नागरिक ले रहे हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, अब पहाड़ी कबीले के लोगों को इंसाफ देने की जो बात हो रही है वो समय आया है। पहाड़ी कबीले के वह लोग हैं जो 1947 में बड़ी संख्या में पीओजे के पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में जाने का कारण जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण वो पाकिस्तान में पीओजे के चला गया। लेकिन जो जहां बच गए वो यहाँ हमारे जो एलओसी है, एलओसी पर रहते हैं और डटे रहते हैं, सिपाही का काम करते हैं, सीमा पर सेना का भी सहयोग करते हैं। महोदय, पहाड़ी कबीले के लोग जिला राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, उड़ी, करना, तंगधार, ईडवाल, मच्छल, लोलाब, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़, पाडर में बसते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ये पहाड़ी कबीले के लोग जो है वो बसते हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 50 सालों से अपने हकों की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन मिलता क्या था? लाठियां, मिलता क्या था? जेल, मिलता क्या था? धक्के, और उसके बाद
फिर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए इन पहाड़ी कबीले के लोगों को जो था वो छोड़ दिया जाता था। महोदय, पहाड़ी कबीले में 80% लोग जो हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं और 80% जो मुसलमान भाई हैं वो पहाड़ी कबीले के लोग हैं जो कि अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कभी भी इनको जो है इंसाफ नहीं दिया गया। 3 खानदानों ने अपना दबदबा बनाए रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने यह अपना दबदबा बनाए रखा और पहाड़ियों को इंसाफ नहीं दिया गया। महोदय, 15 अगस्त 2019 को लाल किला से पहाड़ी कबीले का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और तब पहाड़ियों को जब विश्वास हो गया कि अब हमें इंसाफ मिलेगा और उनको एक आशा बनी कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। महोदय, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी 4 अक्टूबर 2022 को राजौरी और कश्मीर में जाकर इन पहाड़ी कबीले के लोगों को मिले, उन्होंने स्वयं देखा कि इनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए और आज पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेटस देने के लिए जहां जो चर्चा हो रही है, ये जो विधेयक लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा विधेयक है। मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं। अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं महोदय, बड़ी बात तो यह है कि गुज्जर बकरवाल को आरक्षण मिला है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह सरकार ने भरोसा दिलाया है हमारे गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिपी भाइयों को। यह बहुत बड़ी बात है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा। यह ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जी जी, श्री डी रवि कुमार जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, இந்த முக்கியமான மசோதா மீது பேச வாய்ப்பளித்தமைக்காக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் வால்மீகி என்ற சாதியை ஷெட்யூல் காஸ்ட் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கான இந்த மசோதா வரவேற்கத்தக்கது. இதனால் அந்த சமூகத்தினர் இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட பயன்களை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே இந்த மசோதாவை நான் வரவேற்கின்றேன். அத்துடன் இந்தியா முழுமைக்குமே இப்படி பல்வேறு திருத்தங்களை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற படுகர் இன மக்கள், அவர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக அவர்கள் போராடி வருகிறார்கள். அந்த நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய உறுப்பினர் மாண்புமிகு ராசா அவர்கள் இந்த அவையிலேயே அந்த கோரிக்கையை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். அதையும் இந்த அரசு பதிவோடு பரிசீலிக்க வேண்டும். அது மட்டுமின்றி மாண்புமிகு சமூக நீதி அமைச்சர் அவர்களிடத்திலே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கடந்த கூட்டத்தொடரின் போது அக்கட்சியினுடைய தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் ஒரு வேண்டுகோளை கடிதமாக அளித்திருக்கின்றார். தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்ற மீனவ மக்களை பழங்குடியினர் பட்டியலிலே சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை அமைச்சரிடத்திலே அளித்திருக்கின்றார். அந்த கோரிக்கையையும் பரிசீலித்து இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஷெட்யூல் ட்ரைப் பட்டியலை மாற்றம் செய்கிற அதிகாரம் ஒன்றிய அரசிடம்தான் இருக்கிறது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய பிரிவு அந்த அதிகாரத்தை ஒன்றிய அரசுக்கு வழங்கி இருக்கிறது. ஆனால் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலை மாற்றம் செய்வதற்கு, அதிலே திருத்தம் செய்வதற்கு மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டிலே பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியினுடைய பட்டியலிலே அந்த சாதிகளை இழிவான பெயர்களிலே அதற்கு முன்பு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலங்களிலே குறிப்பிட்டு வந்தார்கள். அதை மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு அவர்களை கௌரவமான அடையாளத்தோடு குறிப்பிடுவதற்கான திருத்தத்தை செய்துவிட்டது. அதே போல SC ST பட்டியலிலே இருக்கின்ற சாதிகள்
தமிழிலே இன் என்ற இழிவான இறுதி சொல்ல எழுத்தோடு முடிகின்றன. அந்த விகுதியோடு முடிகின்ற அந்த பெயர்களை எல்லாம் கௌரவமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோள் நீண்ட காலமாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதையும் இந்த அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். இது தொடர்பாகவும் மாண்புமிகு அமைச்சரவையிடத்திலே நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றோம். இந்த பட்டியல்கள் உருவாக்கப்பட்ட போது பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே 1922ஆம் ஆண்டு நீதி கட்சி ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் அங்கிருக்கிற ஆதிராவிட மக்கள் எல்லாம் தங்களை பறையர்கள் பஞ்சமர்கள் என்று அழைக்கக்கூடாது, ஆதி திராவிடர்கள் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பெருந்தலைவர் MC ராஜா, ரெட்டமலை சீனிவாசன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் எல்லாம் வாதாடி அதற்காக மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி அதற்காக ஒரு அரசாணையை பெற்றார்கள். அதன் அடிப்படையிலே ஆதி திராவிடர் என்ற பெயர் அவர்களுக்கு சூட்டப்பட்டது. ஆனால் 1931 எடுக்கப்பட்ட சென்சஸிலே அந்த பழைய சாதிகளே குறிப்பிடப்பட்டன. இந்த குழப்படி கடந்த 100 ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது. அடுத்து வரும் சென்சஸிலே அந்த திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி அமைகிறேன். வணக்கம். अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस SC/ST पे बिल पे बोलने का जम्मू कश्मीर से संबंधित मौका दिया। मैं कहना चाहता हूं कि लोधी के जमाने से फिर मुगल्स के जमाने में फिर अंग्रेजों के जमाने में जो मुस्लिम गुर्जर आज बने हुए हैं, जिनका धर्म परिवर्तन करा गया था, वो बहुत परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में जो ST में आते हैं, उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, देश के लिए लड़ाइयां लड़ी। तो मैं उनके लिए मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आए दिन हमारे जुगल किशोर जी ने बड़े अच्छे अभी ढंग से बोला, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उसी रेफरेंस में जुड़ते हुए कुछ ही परिवार, कुछ ही पार्टियां, कांग्रेस, PDP, उनके जो मैडम मुफ्ती की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वोट लेती रही, शोषण करती रही, उनके लिए थोड़ा देर सभा की सहमति हो तो इन विधेयक को समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। जी दोनों विधेयक की समाप्ति तक बढ़ा दिया जाए। जी बोला जाए। ये हमेशा उनकी वोट लेते रहे, रिश्तेदारी करते रहे, उनको दिया कुछ नहीं, तो 370 के हटने के बाद उन्हें मिला, लेकिन आए दिन उन्होंने, सरकार ने काफी उनको दिया, और जो उनको सुविधाएं दी, जो बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अपने भाषण में कई बार कहा, तो उनको जो सुविधाएं मिली, बट उन्हें आए दिन कोई ना कोई वहां अफवाह चलती रहती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अब भी और आने वाले समय में कभी भी जो उनका वहां मुस्लिम गुर्जरों के लिए जो आरक्षण दिया है, उसमें से कभी कम ना करा जाए। अगर किसी को देना भी हो तो अलग से दें, उनका कभी आरक्षण कम ना किया जाए। और जो देश की बाउंड्री पे जो उनके लिए कॉलेज और स्कूलों की सुविधा की जाए, SEZ बना करके उनके लिए जो रोजगार के लिए उनको सुविधाएं दी जाए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो बहुत परेशान है। प्रदेश स्तर पे कुछ कमेटी बना के, जिला स्तर पे कमेटी बना के सर्वे कराया जाए। बस खत्म कर रहा हूं। जो जिनके घर बनाने के लिए या कुछ छोटी मोटी खेती करने के लिए जमीन नहीं है, और गांवों में MLC की जमीन, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन जो खाली पड़ी हुई है, जो सरकारी है, उनको अलॉट करके उनको कुछ घर बनाने की ऐसी दी जाए, उनको ये लगे कि ये देश हमारा भी है। बस एक बात के खत्म कर रहा हूं। पिछले दिनों बड़ा संघर्ष हुआ, बहुत सारे राजस्थान के गुर्जरों ने बलिदान दिया, 83 गुर्जरों ने बलिदान दिया था, और वो पिछले दिनों जो सरकार कांग्रेस की थी वो बहकाती रही वहां के गुर्जरों। बस खत्म कर रहा हूं कि मैं 9वीं सूची में डालने के लिए हमने भारत सरकार को भेज दिया है। अब दोनों जगह सरकार एक ही पार्टी की है, तो राजस्थान के गुर्जरों को भी 9वीं सूची में डाल के उनको भी दलित का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। श्रीमती अप्पा रूपा पौदार जी। Thank you, Madam, for. I thank my party, All India Trinamool Congress, to give me an opportunity to speak on this Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order and Scheduled Tribe Order Bill 2023. Ma'am, it's a pleasure to see this government finally give respect to the Valmiki community through Scheduled Caste Order
and to the Koli community, the Pahari ethnic group through scheduled tribe order. But at the same time, it is extremely disheartening to see what this government is doing with the SC, ST and OBC across the country. Has it been fulfilled the reservation facilities already in vague in other portion of the country? Has there any specific object to uplift the people of Jammu and Kashmir by the government of India that needs clarified in the proper perspective? No specific project ideas has been tabled in the house to improve the lives of Jammu and Kashmir. Only in implementation of reservation policies will not serve the purpose. In the perspective of the coming election, this has been the initiative by central government. Provision of punishment for atrocities on backward people has not been highlighted. In 2022 alone, there were nearly 60,000 atrocities against scheduled caste and 10,064 atrocities against scheduled tribe. As per NCRB data, the crime against tribal has been increasing year after year between just 2 years from 2020 to 22. There has been an increase of 22% crime against the tribal. Madam, the gross enrollment ratio of SC/ST students at undergraduate level is at 23% and of 17.2%, whereas national average is only 26.3%. Madam, the Ekalavya school, which have been set up for the SC/ST students, the union government initiative have been taken, but still today 38,000 vacancies are not been filled up. आप स्कूल्स बना रहे हो, कॉलेजेस बना रहे हो, यूनिवर्सिटीज बना रहे हो, अगर वैकेंसीज फिलफिल नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे कौन? स्टूडेंट्स आएंगे और पढ़ाने वाले टीचर नहीं रहेंगे तो वो लोग क्या? नहीं मैडम, मैं अकेले स्पीकर हूँ, तो क्या कैसे होगा? Madam, even the recent data which we have witnessed, the union government umbrella scheme for the development of scheduled caste and the umbrella program for the development of scheduled tribe have unspent the amount allotted to them. In this scheme, the unspent is nearly 28% for SCs and 24% for STs. मैडम, अगर इतना ही विकास, मैडम अच्छी बात बोल रही हूँ, आप सुनिए तो, इतना ही विकास अगर इस देश, मैडम भी अच्छी बात बोल दीजिए। अगर इतना अच्छा विकास 10 साल से ये गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो लोग इलेक्शन करने से क्यों डर रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देश का या कश्मीर का जनता तय कर देंगे कि वो लोग अच्छे काम किए। उन लोगों को जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बोर्ड उनको वापस करवा दीजिए। डिमोनिटाइजेशन के नाम पर देश के आम जनता लाइन पर लगे रहे, कितनों ने अपना जान गंवा दिया, लेकिन आज तक टेररिज्म नहीं बंद हुए। हमारे जवान आए दिन अपने आहुति दे रहे, तो आप तो फेडरल स्ट्रक्चर को आहत कर रहे हो, तो दिन ब दिन इस तरह का घटना घटेगा, तो ये सही बात नहीं है। इनफैक्ट हमारे गवर्नमेंट बंगाल में ममता बनर्जी ने शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल सेटअप किए हैं, जो कोई भी स्टेट में अभी तक किया नहीं, जो कोई भी स्टेट किए नहीं। और श्रीमती जी माधवी जी, मैडम एक मिनट, अच्छा 1 मिनट देने दो, बैठ जाइए। मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर दूँ। हाँ ठीक है। पोद्दार जी बोलिए। In fact, the ministry spent only 20% less than what they have allotted. We need more scheme for the students of the welfare of SC, STs and OBCs and the minorities. We have done Kanya Shri scheme, which is benefiting 78 lakh women in West Bengal, which has been recognized by United Nations. ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ममता दीदी का गवर्नमेंट जो है शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल किए हैं, जो और भी स्टेट्स में नहीं है, और हमारे जो देश के जो राष्ट्रपति है वो भी दलित है और वो भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से है, लेकिन ये जो नया पार्लियामेंट हाउस इनॉर्गेट हुआ उसमें वो नहीं वो आए। तो आज हमारे जो कपूरिया जी हम लोगों को सिखाया है, तो अगर सही मानों में अगर आप उन थॉट्स को लेके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबको लेके चलेगा। इस तरह के पागलों के जैसे चिल्लाने से नहीं होगा। धन्यवाद आप लोग, धन्यवाद। महासचिव जी,
Madam, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 6th February 2024 passed the Constitution, Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2024, and the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. Madam, I lay on the table the Constitution, Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2024, and the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 as passed by Rajya Sabha on the 6th February 2024. बहुत अच्छा श्रीमती जी माधवी Thank you, Madam, for giving me the opportunity to participate in this discussion. I fully support it. This is a welcome step. I would also take this moment to highlight the issues faced by the scheduled tribes throughout the nation and make a few suggestions on the same. Tribal people are estimated 10.4 crores and they are covered 8.61% of the country's total population as per the end of the year review 2022 of the Ministry of Tribal Affairs. Even after 75 years of independence, tribal communities are most disadvantages in terms of access to sanitation and hygiene, education, nutrition, drinking water, and medical services. And coming to the education, ma'am, the government should focus more on the tribal education, especially at the primary level. The tribal regions, the majority of the schools suffering from the insufficient infrastructure and learning materials and basic sanitary facilities. Owing the specified absence of immediate economic benefits associated with the education, tribal parents often prioritize the engaging their children to financially rewarding employment opportunities. Furthermore, many education initiatives targeting the tribal communities are formulated in official or regional languages that are unfamiliar to the tribal students, which is a challenging of the effective learning. The tribal communities compressed over the 7% of the 7% of the Andhra Pradesh population. The 30 Eklavya model schools that have been established and concentrated only 8 out of 26 districts. Therefore, to provide quality education to the tribal students, there is a need for more Eklavya model residential schools, all the tribal districts and state and country with adequate availability teachers. And coming to the health, ma'am, provision of emergency transport for pregnant tribal women to health facilities for obstetric care, one of the major necessity for the tribal women, and also establish the more and mini Anganwadi centers and expansion of village grain banks to tribal areas can help increase the access to the nutrition in the tribal areas. And also, बहुत अच्छा madam, I'm concluding, ma'am. Low representation of the scheduled caste and scheduled tribes at the senior positions. I would like to conclude, ma'am. Our esteemed Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu has extended the SC/ST sub-plan of Andhra Pradesh for the 10 years to provide more growth and development opportunities to the tribal population in the Andhra Pradesh. I would request the Minister to address the issues raised by us and take our suggestion into account. With this, YSR Congress Party, I support this Constitution Amendment Bill. Thank बहुत you. अच्छा धन्यवाद धन्यवाद श्री अरविंद सांबत जी धन्यवाद चेयरमैन मैडम। इस संविधान के संशोधन बिल पर 1956 की अनुसूची में प्रविष्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर की वाल्मीकि कम्युनिटी, इसके साथ में चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, मेहतर ऐसे जो शब्द प्रयोग किए, मेरी पहली प्रार्थना रहेगी कि भंगी शब्द यहाँ से कैसे हटा सकते हो। देखो वो समाज को करना है, लेकिन उसको ये शब्द ही आगे चलकर जिंदगी में कभी प्रयोग न करें, वो समाज हमारे समझ में आए। मुझे मैं इस बिल को वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन दो बातें कहना चाहता हूँ कि इसमें जो फिनेंशियल प्रोविजन है लास्ट में, वो कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, आपने। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि अगर आगे चलकर इनको
आप निधि की उपलब्धता नहीं करोगे तो भी आपको जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी तो निधि की भी उपलब्धता होनी चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव तो वहां नहीं हो रहे, 370 अनुच्छेद खत्म करने के बाद हम चाह रहे थे कि लोग कश्मीर में आ जाए, हिंदुओं का फिर से वहां पुनर्वसन हो, तो आज भी नहीं हुआ। और एक थोड़ी सी अलग सी बात 1 मिनट में कहूंगा कि हम महाराष्ट्र में तो इतनी परेशानी है, अभी पूरा महाराष्ट्र इस जातिवाचिक लड़ाई से खड़ा हुआ है। मराठा का आरक्षण चाहिए, गोवारी आरक्षण आज चालू है आंदोलन उनका, ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही है। और मैडम बैठी है पीछे, उनको पूछो क्या हालत चल रही है वहां। आदिवासी आंदोलन कर रहे, धनगर कर रहे। आप जैसे सिनोनिम कहते हैं उसी शब्द प्रयोग का कार्य तो वही है। जैसे धनगढ़, वहां धनगर है, वो धनगर को आज भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। मंत्री जी से मेरी प्रार्थना रहेगी इसमें भी आपको ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग मेरी आज ये रहेगी कि 50% की मर्यादा जो संविधान ने रखी है, उस मर्यादा के तहत हम कर नहीं पा रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो मर्यादा अगर बढ़ाई जाएगी तो आज जो सारे आंदोलन शुरू है ना, वो खत्म हो जाएंगे। देश में जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, वो किसी भी तरह की हो, एक बार उस राज्य को पूछकर उनके साथ में उनको देना। भाई अगर हम 50 से 10% बढ़ाते, 60% प्रतिशत करते हैं, जैसे तमिलनाडु में मुझे लगता है 69% है, तो वो अगर प्रतिशत बढ़ा देते तो वो आगे बढ़ने के बाद में अगर आप राज्य को कहे कि आपके पास पिछड़ी जातियां कौन सी, क्योंकि शब्द के लिए अगर उस पर लड़ाई करते रहे, धनगढ़ है या धनगर है, र और ड में एक अक्षर के लिए किसी समाज को उनको उसे वंचित रखना सही नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अगर सरकार, समय अभी कम है लेकिन ये सोचे कि 50% का जो मर्यादा है वो अगर खत्म करेगी तो बहुत अच्छा काम होगा। इस बिल का स्वागत करता हूँ, उसके लिए निधि की उपलब्धता करिए और वहाँ चुनाव में भी इनको, पढ़ाई में, चुनाव में, जॉब में भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी अपेक्षा करके मेरा मनोगत खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री दिलेश्वर कामत जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज आपने मुझे 2 बिलों पर, संविधान जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। महोदया, दोनों विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। संविधान जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 वाल्मीकि जाति को लक्षित करता है। संवैधानिक संशोधन में वाल्मीकि समुदाय को जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति सूची में जोड़ने का इस विधेयक में प्रावधान रखा गया है। वाल्मीकि जाति को जम्मू कश्मीर में प्रवास करने में के लगभग 60 साल के बाद 2020 में ही अधिवास का दर्जा दिया गया था। 1957 में जम्मू में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद वाल्मीकि समुदाय के 3000 से अधिक सदस्य पंजाब के गुरुदासपुर से चले गए। यह समुदाय मुख्य रूप से जम्मू शहर और उसके आसपास की कॉलोनियों में रहते हैं। शेड्यूल कास्ट सूची में वाल्मीकियों को शामिल करने से वे नौकरियों, पदोन्नति और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे और समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। इसलिए यह बिल बहुत ही सराहनीय है। महोदया, संविधान जम्मू अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह समुदायों को शामिल किया गया है। इस संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति आदेश 1989 के इन प्रस्तावित परिवर्तनों के बाद की धारा 2 को प्रस्तावित करके औपचारिक रूप देना है, जिससे विशिष्ट निर्दिष्ट किया जा सके। यह पदनाम उन्हें विशिष्ट संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण शामिल हो सके। संविधान अनुसूचित हो गया, 1 मिनट। जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 223 जम्मू कश्मीर और संघ राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पहाड़ी कबीला तथा पहाड़ी जाति समूह के समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान समूह अनुसूचित जनजातियों का आदेश 1980 का संशोधन कर इसे पारित किया। अंत में मैं इस अवसर पर भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार में भी केवट, कौट, केवट, धानुक,
कहार, अमात, बिंद, बेलदार, गंगोत, गोरी, नुनिया तथा तरहा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार अनुशंसा कर केंद्र सरकार को भेजा है। इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे इन समाज को मुख्य धारा का में शामिल किया जा सके। दोनों विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमेश माझी जी। धन्यवाद चेयरमैन मैडम। आज जो द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2023 पर चर्चा हो रहा है, मैं इस बिल को समर्थन करता हूं और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कम्युनिटी गड्ढा, ब्राह्मीण, कोली, पदारी ट्राइब्स, पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए रिकमेंड किए थे और 1980 में 80 से डिमांड हो रहा है कि पहाड़ी जो कम्युनिटी है, जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन ने भी उसको रिकमेंड किया था कि उसको एसटी दर्जा दिया जाए। और उड़ीसा में अगर देखेंगे लगभग 169 जो कम्युनिटी हैं, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने जो रिकमेंड किए थे 1978 से अब तक 169 कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे मेरा संसदीय जो क्षेत्र है नवरंगपुर, वहाँ कोरापुट जिले के कुंदरा, बोईपालीगुड़ा और कोटपाड़ इलाके में जो दुर्वा संप्रदाय के लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, उनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। और कोई कुंडारेडी, मालकानगिरी जिला के मालकानगिरी, चित्रकोंडा, कालीमेड़ा, मालकानगिरी, कोरकोंडा इलाके में रहते हैं, उनको भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि जितना सारे 169 का जो प्रपोजल आया है, इसमें कुछ जो दुर्वा और कुंडारेडी के मेरा जो संसदीय क्षेत्र का जो कम्युनिटी है, उनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उनका अगर देखेंगे दुख लगेगा। इसीलिए मेरा निवेदन हो उनको जनजाति का दर्जा कैसे दिया जाए। आज जो बिल आया है, इस बिल को मैं समर्थन कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। थैंक यू मैडम। मैं JNK शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 और शेड्यूल्ड ट्राइब बिल दोनों को सपोर्ट करने के एनसीपी की तरफ से मैं खड़ी हूँ मैडम। मैं मंत्री जी से, अर्जुन मुंडा जी बहुत मंत्री और आप अभी तो उन पे डबल जिम्मेदारी, अभी तो किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उनको मिल गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो हमसे नाराज है कि गुस्से में है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे बिल उन्होंने ST के लाए, लेकिन महाराष्ट्र की मांग जो इतने सालों से है उस पर वो हमें न्याय नहीं दे। और मैं सिर्फ उनको पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में आपको बोल दूं कि महाराष्ट्र में आज, जैसे अरविंद जी ने कहा, महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का हो रहा है कर्जा माफी के लिए, और दूसरा हो रहा है मराठा समाज के, हमारे एक महाराष्ट्र के सुपुत्र है जरांगे पाटिल जी, उनका बहुत बड़ा आंदोलन आज महाराष्ट्र के आरक्षण के लिए हो रहा है। उसके बाद धनगर समाज का आंदोलन, धनगर समाज को तो 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम आपको आरक्षण दे देंगे, जो उनकी मांग है, उसका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद लिंगायत समाज, मुस्लिम समाज, भामटा, रामोशी जो VJNT है, वो ST में आना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं कि धनगर और धनगढ़ जो उन्होंने, अरविंद जी ने भी कहा, और टाकणकर और टकारी दोनों एक ही है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरी उनसे विनती है, क्योंकि अर्जुन जी हमेशा जवाब भी देते हैं और उनका कहना है कि राज्य ने प्रपोजल भेजा तो मैं जरूर सोचूंगा, सबका ही, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टकारी, भामटा, रामोशी, इन सब के बारे में सोचूंगा। ये हमेशा वायदा करते, उनके मैं आभारी हूँ, लेकिन फिर रुक कहाँ गया है? महाराष्ट्र सरकार तो उनके 200 MLA है, भेजने में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो 303 है ही आपके, तो ये आरक्षण अटका कहाँ है? तो मैं सिर्फ उनका कहती हूँ कि आप अनेक राज्यों के लिए लाए, महाराष्ट्र के लिए क्यों आप आरक्षण का नहीं सोच रहे? और ये छोटे छोटे बिल लाने से, अगर देश के लिए पूरा बड़ा एक बिल लाए तो हर राज्य को न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं हर भाषण में हर राज्य से, कल हमारे भाई
कर्नाटका से बोल रहे थे, वो भी धनगर समाज के लिए मांग रहे थे, लिंगायत के मांग रहे, हमारे यहाँ भी मराठा, लिंगायत, मुस्लिम सारे ही मांग कर रहे, तो क्यों ना एक बड़ा सा